Warm regards, hello, and welcome to everyone, every viewers. Yet another episode on Sushant Singh Rajput and his case, his justice. But before we proceed, it's only fair to thank our host, Mimia Salgaonkar. Thank you so much for giving me and others the opportunity to come on your platform and speak our heart out. So, guys, today we are going to talk about a very interesting aspect in SSR case, and that aspect is the PR agenda. The entire agenda of the PR was to somehow, kisi tarah, to somehow clear the name of the accused number one, Rhea. And how do they do that? They pump in money to these PR agencies, and these PR agencies, they without any conscious, उनको पैसा दिखता है बस. जहां पैसा वहां भजन. पैसा दो तमाशा देखो. And they portray these criminals, let me put it this way, these criminals in such a way कि भाई इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं. Ladies and gentlemen, yet another episode. We will debunk all manipulations, all lies spoken by the accused number one. If they have the right to accuse somebody who's not alive to defend, they forgot that Sushant Singh Rajput today has many voices. Sushant Singh Rajput may not be alive physically, but he will always be alive within our hearts. It's quite strange. A boy from a common family started his journey, made it to the top, a superstar with his dedication, his hard work, was going absolutely fine until one person came, entered his life. Now, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सुशांत was very innocent person. लाई लग जिसको बोलते हैं, those people who understand the meaning of लाई लग, उसको हर एक चीज में अच्छाई नजर आती थी. फिर चाहे लोग उसका फायदा उठाते रहे जिंदगी भर. आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं. जिंदगी भर लोगों ने उसका फायदा उठाया, बट ही केप्ट ऑन गोइंग बिकॉज हिज एम was totally different. His focus was totally on his dreams. And that's why he made his dreams. He listed his dreams, accomplished most of them, and was on his way to accomplishing all his dreams. But, ladies and gentlemen, what exactly transpired? The woman who came in his life, pretending to be a friend, disguised as a friend. वो गाना है ना, एक हसीना थी, मैं कहता हूं एक क्रिमिनल थी और एक सुशांत था. Ever since this lady entered Sushant's life, everything started to change. ये मैं नहीं कह रहा हूं. ये मैं नहीं कह रहा हूं. These are all statements given by the former employees, friends, family members of our late Sushant Singh Rajput. The moment she came in her life, she started to create differences, whether it's his friends, profession, his family, his workers,
financially taking control, at the same time cooking up stories, making stories. Now everybody must be wondering ke shuru se kaise making stories. I'll come to that part. Very interesting thing. Ever since this lady came in his life, what was the motive? Now, as per her statements, one of her statement, we'll debunk that as we move on. She says that Sushant was taking drugs. I have just one question. Then why were you with this man? Can you answer, Rhea Chakraborty? Why were you with this man? She will have no answer. Why did you not communicate with the family? She says she communicated, but the family says elsewise. If I look at the angle of the staff members, they have their own version and very interesting version. If you remember Rajat Mewati, an accountant who used to work with Sushant Singh Rajput, clearly states that things were very transparent before Rhea came in Sushant's life. अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. ऑब्वियसली सुशांत जो है वो सुपरस्टार था. पैसा बहुत ज्यादा था. उसको मैनेज करना, डे टू डे लाइफ मैनेज करना, उसने अपना काम मैनेज करना, ही हैड एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हर एक चीज मैनेज करने के लिए एवरीबडी ऑफ सच स्टैचर रिक्वायर अ टीम, एंड सुशांत हैड अ टीम to manage his affairs, to manage his daily affairs, I would say. So these people used to keep a record. For example, अगर सुशांत को कुछ खरीदना है या मार्केट से कोई सामान आ रहा है, कुछ कोई anything which is bought online also, for everything there was a record which used to be maintained. And who used to maintain it? Rajat Mehwati used to maintain it. बट एज पर हिज स्टेटमेंट ही सेज कि पहले ऐसा होता था कि अगर घर में सब्जी भी आ रही है मार्केट से, रॉ वेजिटेबल, उसका भी हिसाब किताब होता था. एवरीथिंग वाज रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्डेड. बट एवर सिंस रिया केम, थिंग्स टुक अ टर्न. नाउ दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम आवर इनसाइडर. This is not something that we are assuming. Neither we will ever talk in this platform based on assumptions कि भाई हवा में बातें नहीं. He's the same guy, ladies and gentlemen, Rajat Mehwati, who found some discrepancies in the finance. इसको बोलते हैं घोटाला. जब फैमिली ने केस करा है रिया पर 15 करोड़ का, तो ऐसे तो नहीं करा होगा. 15 करोड़ रुपया हवा में तो नहीं चला गया, डिसअपेयर हो गया. कहां गया? This is exactly what Rajat Mehwati was pointing out, that carefully Rhea Chakraborty was taking out his money. अब वो एक्सपेंसेस कुछ भी शो करे, ब्यूटी पार्लर, पूजा सामग्री, सब ड्रग्स में जा रहा था पैसा. सब का चिट्ठा बाहर आया, एनसीबी लेके आई. शी वाज स्नाइफिंग ऑफ द मनी. Rajat Mahawati in 2019 came to know about this. And very interesting thing happened. Rajat Mehwati wanted to communicate with SSR, and he said, and he told SSR
देयर आर सम फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है जनाब, सर, देयर इज अ मेजर फ्रॉड इन योर अकाउंट। टू विच सुशांत वाज अ लिटिल शॉक्ड। लाइक आई सेड, भोला इंसान, सब पे विश्वास करता था, सबको साथ लेके चलता था। ही ट्रस्टेड पीपल, और जिसको कहते हैं ना, पीठ पे छुरा भोंक दिया, वैसा केस। सो सुशांत ने क्या करा? सुशांत ने कहा, ओके, आई वांट द डिटेल्स ऑफ माय अकाउंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब सुशांत को पता लगा कि उसके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं पता नहीं चल रहा, तो उसने उसी वक्त, जब रजत ने उसे बताया, उसी वक्त श्रुति मोदी को कहा कि मेरे को मेरे अकाउंट्स देखने हैं। Obviously, as a superstar, you don't see these accounts on daily basis. Yes, महीने में कभी देख लिया, because you trust people whom you hire, whom you have. You trust, there is a bond. अब इंटरेस्टिंग मोड़ आता है कहानी में। श्रुति मोदी डर गई। श्रुति मोदी को लगा कि अब तो भांडा फूट जाएगा। ये वही श्रुति मोदी है, भाइयों बहनों, जो रिया चक्रवर्ती के साथ है और उसके घर में भी रहती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिया के नेबर्स ने इंटरव्यू में लाइव कहा। सेम श्रुति मोदी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वेरी शॉक्ड। अब उसे डर लग गया कि अब तो सर ने अकाउंट्स मंगवा लिए हैं, अब तो भांडा फूट जाएगा, अब क्या करें? कैन यू इमेजिन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? शी कॉल्स अप रिया चक्रवर्ती इमीडिएटली, मैडम, और रिया, और वट एवर शी कॉल्ड हर, सुशांत को डिटेल्स के बारे में पता लग गया है, वो अकाउंट्स मंगवा रहे हैं। द सेम डे Rhea goes to Mont Blanc to confront Sushant Singh Rajput. When Rhea goes and confronts, at the same time, ladies and gentlemen, ये श्रुति मोदी जो है, ये रजत मेहवाती को कॉल करती है और कहती है, रजत, यू आर फायर्ड। फोन के ऊपर। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? रजत मेहवाती को पता चलता है कि अकाउंट में से पैसा जा रहा है। रजत मेहवाती सुशांत को से बात करता है। सुशांत मांगता है अपने अकाउंट्स डिटेल श्रुति मोदी से। श्रुति मोदी फोन करती है रिया को। रिया जाती है एकदम से सुशांत के पास कि मैं सुशांत को देखती हूं, श्रुति तुम उसको फायर कर दो। और श्रुति मोदी कॉल करती है रजत मेहवाती को ऑन फोन। शी सेज, अब आपकी जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम एसएसआर। तो रजत मेहवाती थोड़ा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स कोई भी होगा यही बोलेगा। तो वो कहते हैं कि मेरी बात कराइए सुशांत से। लेकिन तब तक, लेडीज एंड जेंटलमैन, होता क्या है? नंबर्स बदल जाते हैं। सुशांत से बात नहीं कराई जाती। एक तरफ रजत मेहवाती फोन पे फोन करता जाता है, लेकिन उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता किसी के साथ, बिकॉज ऑल एंट्री is now closed for Rajat Mehwati. सुशांत को यह बता दिया जाता है कि रजत मेहवाती ने नौकरी छोड़ दी है। मैनिपुलेशन देख रहे हैं आप? दिस इज द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन which was happening in Sushant's life. Ladies and gentlemen, on your screen is Sushant ke Yodha. Scan the QR code and fill your grievance, raise questions. ये बीच में मेमिया ने ये डाल दिया है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। स्कैन करेंगे कोड, अगर आप करते हैं तो उसमें डायरेक्टली सीबीआई और अदर अथॉरिटीज के पास आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
You can ask who killed Sushant Singh Rajput and send your queries also, because I personally feel that maintaining pressure is the key. A lot of people have asked me this question every now and then, that यार हम कितनी grievance फाइल कर रहे हैं, हम कितने टैग्स कर रहे हैं, there is no reply coming from the other side. My answer is very simple. अरे भाई, सीबीआई आरटीआई का जवाब नहीं देती, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जवाब होता है उनका. आप जब कोई ट्वीट करते हो तो उसमें वो रिप्लाई करेंगे कभी. बट द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, the reason you are doing it, you are letting them know that we are keeping an eye. You are building that pressure on the agencies, on the government, on any authority. जब लोग शांत होते हैं तो कॉन्स्पिरेसी अपना चुपचाप होके निकल लेती है. When people stop raising their voice, then these injustice will happen again and again. So build that pressure, keep building that pressure. ऐसा कभी मत समझिएगा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा. This is absolutely wrong. Everybody is noticing everything on social media, on Sushant Singh Rajput case, very closely. If you are thinking for a minute that the agencies are not in the movement, you are wrong. They are right here in the movement. They are watching everything. This is how they do it. Perhaps someday. Anyways, moving forward, we were talking about Rhea. We were talking about Rajat Mehwati. So Rajat Mehwati is carefully removed from the job. These things are very, very, very important to know. Very interesting as well. Rajat Mehwati हो गया, Ankit हो गया. Ankit was so close to Sushant Singh Rajput that he used to sometimes sleep in the same room with Sushant. Imagine how these people systematically, one by one, started removing the staff members. रजत हो गया, रजत मेहवाती हो गया, अंकित हो गया, कुक हो गया, अशोक, ड्राइवर हो गया, रजाक. What was the intention behind it? Intention is very clear. I really want to understand that where Rhea was on the 14th. What was she doing? Bhaiyo Behno, she was on WhatsApp with that taklu, Mr. Bhatt, the same person. The same person, ladies and gentlemen, let me disclose also here. उनकी फैमिली से, मिस्टर भट्ट की फैमिली से उनकी डॉटर इन लॉ मिस मिस लवीना लोड came out with some disturbing information. An insider who says that these are bloody drug addicts, criminals, links with underworld.
जाइए, डोंट बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट डोंट बिलीव इन दैट। आप अपनी रिसर्च करिए, गूगल करिए, सोशल मीडिया पे देखिए लवीना लोड कौन है और क्या बोला उन्होंने। Listen to the interviews given by her. Now she is something, someone who is inside, from inside the family. Can you imagine कि उनको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पता होगी? मैं तो कहता हूँ, चाहता हूँ किसी तरह उनसे टू गेट इन टच विद दिस लेडी, ब्रेव लेडी आई वुड से। उनके मैंने इंटरव्यूज देखे लवीना जी के, जिस तरह उन्होंने खुलासा करा भट्स के बारे में। मैं चाहता हूँ उनसे एक बार बात करना, किसी तरह वो किसी स्पेस पे आ जाएँ या किसी किसी के भी लाइफ पे आ जाएँ, डज़न्ट मैटर, यहाँ आएँ या किसी भी यूट्यूबर के लाइफ पे आके ये खुलासा करें। आई एम श्योर लेडीज़ एंड जेंटलमैन दैट दैट लेडी फ्रॉम द भट्ट फैमिली वुड नो द इनसाइड एंड वुड डेफिनिटली नो अबाउट रिया, डेफिनिटली नो अबाउट सुशांत सिंह राजपूत केस। I have that feeling. I have that feeling because of obvious reasons. Perhaps someday that might be possible as well. So the staff members, like I spoke before, were systematically removed. At the same time, there was a bug which was planted in Sushant's mind. अब आप ये सोचिए, मैं आपको डिफरेंट वे में समझाता हूँ। लॉकडाउन का पीरियड है, आप घर पे हैं, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको कह रहे हैं, ये लोग सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये तुम सही नहीं कर रहे, ये तुम ठीक नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम बीमार हो, तो आपको कैसा लगेगा? फॉर 2 मिनट्स यू विल आल्सो से अरे यार, सारे ही बोल रहे हैं तो शायद यू नो दिस इज हाउ यू कॉर्नर अ पर्सन। नाउ व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस थिंग्स? लेट मी टेक यू टू अ जर्नी, अ वेरी स्मॉल वन, Capri Heights. Why do you think that a secured location, a secured locality, a secured home like Capri Heights was changed to Mont Blanc? Why do you think so? And कैसे हुआ ये? आप लोगों ने तो सिर्फ ये सुना है ना, कुछ लोगों को पता भी होगा, आई एम श्योर, बट मोस्ट ऑफ देम who do not know, systematically, ladies and gentlemen, systematically, केपरी हाइट्स में होता क्या था कि नाउ सुशांत यूज्ड टू कम्युनिकेट विद हिज स्टाफ विद वायरलेस रिसीवर, जिसको बोलते हैं वॉकी टॉकी, और इंटरकॉम, आप ये भी कह सकते हो। इन लोगों ने क्या करा, सिस्टमैटिकली सुशांत के वॉकी टॉकी में अजीब और गरीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, खुद ही टेबल पे सेब रखेंगे, एंड व्हेन सुशांत विल सी, दे विल रिमूव इट, एंड सुशांत विल से यहां पर सेब पड़ा था, वो कहेंगे नहीं, यहाँ तो कभी सेब पड़ा ही नहीं था। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल हाउ डू यू प्ले विद द mental, you know, mindset of a person. How do you play that game? कोई भी इंसान सोचेगा, ओहो शायद मेरे को भले का लग रहा हो, शायद वो चीज वहां नहीं होगी। But if you constantly start doing it, then the person feels, oh my God, is there something wrong? This is exactly what happened. The atmosphere created in Capri Heights was such that सुशांत को भी लगा कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है। कभी पूजा करा देती थी वो रिया, कभी अपने घर में, आई डोंट नो, लोग कहते हैं जादू टोना कराती, आई डोंट नो, बट सिस्टमैटिकली फ्रॉम केपरी हाइट्स टू अ अनसिक्योर्ड लोकेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप केपरी हाइट्स की लोकेशन देखिए, वीडियो देखिए, अवेलेबल है, कितना सिक्योर्ड लोकेशन था, एंड टू मॉन्ट ब्लैंक। नाउ आई डोंट नो, लेट सीबीआई कम आउट विद their finding.
Why was it done? At the same time, the family was kept away. नवंबर से उनके पिताजी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं मेरे को मेरे बेटे से बात कराना। मैं तो हैरान रह गया था जब मैंने 2020 में वो चैट्स देखी जहां एक बाप प्ली कर रहा है कि मेरे को मेरे बच्चे से बात करा दो। आई वाज शॉक्ड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दैट चैट। आई वाज लाइक व्हाट द हेल वाज हैपनिंग इन सुशांत's लाइफ। क्या ये चीजें एजेंसीज को नजर नहीं आ रही? वेरी शॉकिंग। A father cannot connect to his son. The sisters were kept away. If this is not cornering a person, the entire world is kept away from Sushant. Well, now to some people, they'll say, Are, Sushant to Chandigarh bhi gaya tha February mein. Haan, the innocent Sushant, the bhola Sushant, he doesn't know what's going on, what's cooking around him. क्या क्या पक रहा है उसके आसपास. He went to Chandigarh, but he was called back immediately. 15 से 20 कॉल गए होंगे उसको. अरे सुशांत ये हो गया, अरे सुशांत वो हो गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ. The sisters tried their best. Priyanka ji, when she came to know about the financial discrepancies, the sisters went to confront Sushant at Waterstone, ladies and gentlemen. Yes, I'm talking about a period when he was there. But somehow Rhea managed to overturn his decision to go to Chandigarh. I'm talking about 2019 now. He was supposed to travel with his sisters to Chandigarh, but उसने वो टिकट कैंसिल कर दी. And किसके कहने पे? रिया के कहने पे. Very interesting thing. Now, for some, it might appear that we are just talking and assuming things. Everything is on social media platform. You just need to do a little research. Now, let's take a look at a very interesting interview by the accused number one, Rhea, which RajDeep Sardesai. Let's play that video, that interview, and let's try to understand where the accused number one is coming from, and we will debunk each and every word coming out of her mouth. Let's do it together. Mimia, if you can. But if you love Sushant so much, why didn't you reach out to the family? परिवार, अगर आप सुशांत से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश. जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स. अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था. मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है. जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, नीतू जी. और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही. मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटरस्टोन में कि जाने दो, जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है. आप आए, बहुत अच्छा हुआ. मैं यही तो सोच रही हूँ. 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ. आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटरस्टोन में छोड़ के चली गई उस हालत में. अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो. Very interesting thing here is that, and it is very laughable for me. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. For all those boys and girls out there, everyone, you are having a relationship with a person. Then
What does a relationship mean actually? I mean, you become close to somebody, or you become friends with somebody. Obviously you communicate between each other. हाँ भाई कौन, my name is so and so, I'm the professor, hello मीमिया सरगावकर, कैसी हैं आप, ये वो. In real life I'm talking about. Okay, so you will ask questions. Okay, कौन हैं आप, क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है. Can you imagine, or can you believe, now we are talking about a girl who was who knew Sushant Singh Rajput from 2012, ladies and gentlemen. ये इसकी लाइफ में क्लोज करने का दावा जो कर रही है 2019 के बाद. ओके फाइन, गॉट इट. 2019 के बाद वो यहाँ आई, सुशांत के घर भी रह रही थी उसके बाद आके. अंडरस्टैंडेबल. बट डोंट टेल मी व्हेन द वर्ल्ड नोज के सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, अरे यार सोशल मीडिया पे तो उसके अपने फर्टर्निटी वालों को यही नहीं पता होगा कि सुशांत कौन है, उसके कितने कितनी बहनें हैं. एवरीथिंग. दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज व्हेन शी सेज मेरे को तो पता ही नहीं था कि सुशांत की कोई बहनें हैं और कोई मुंबई में भी रह रहा है. Isn't it strange? Now I'm putting this question on you. Another blatant lie is that mentally, Sushant was mentally not well. Where is the record? Can you show me the record? If you are stating that if somebody is stating that the professor is mentally not well, okay, he's mentally not well. What's wrong with him? Arey, the professor has depression. Okay, the professor has bipolar. Okay, तो डॉक्टर्स के पास गए, कोई रिकॉर्ड तो होगा ना. हवा में बातें सिर्फ कि डॉक्टर ने एक, जैसे वो तोता होता है सड़क पे, वो एक पर्ची निकालता है. क्या वो ऐसा डॉक्टर था क्या? मतलब तो तोता डॉक्टर. तो ये बातें जो है ना, मतलब ये हवा में बातें करी गई. वेयर इज द रिकॉर्ड? आई वांट टू सी द रिकॉर्ड. अगर कोई पेशेंट होता है तो उसका रिकॉर्ड तो होगा ही ना. डोंट नो. आई हियर अगेन, like yesterday I said, no disrespect to people who are going through depression or who have bipolar. But even for them, if you ask them, they will say yes, there is always a record, a history which is there. But in this case, it is just one accused number one blabbering like the tota. जैसे तोता होता है ना, ब्लैबर कर रहा है. वो सड़क पे तोते होते हैं ना, पंडित तोते, ये ऐसे ब्लैबर कर रहे हैं. Now need to understand कि why was this said? Because she wanted to create that mental narrative, and that is the reason. Please play further. And before Bibia plays, let me also say this. Sushant, राजदीप सरदेसाई का, आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप तो शादी करने वाले. अरे शादी करने वाले थे कैसे? सुपरस्टार यार, सुपरस्टार. Would a superstar not tell his family that I am going to get married? Would a superstar not consult his father or any friend? चलो वर्ल्ड में एक इंसान से तो बात करी होगी. Can you show me one person? कभी भी सुशांत ने ये इंटरव्यू में कहा हो? On the contrary, I can show you where he has made a statement that he's single. I can show you a statement by the accused number one, Rhea, where she says I'm single. And that interview is 2019. Batao. So all these stories are manufactured after his death very carefully. अब ये शादी की बात क्यों लेके आनी थी? मेंटल स्टेट की बात क्यों लेके आनी थी? मैं तो सिस्टर को जानती नहीं थी. अरे कमाल है. जब एक इंसान बीमार होता है, अगर सपोज करिए मेरा कोई दोस्त बीमार है, तो what will be my first step? My first step will be okay to call a doctor. Understandable. सबसे पहले डॉक्टर को बुलाऊंगा, साथ ही साथ दोस्त के परिवार वालों को उसी वक्त फोन करूंगा कि ऐसा है जी, मेरा मतलब दोस्त बीमार है, डॉक्टर को बुला दिया है, आप भी आ जाइए. This will be my first step. But in Sushant's case, nothing. I want to know. In this question, I want to know, Rhea ji, did you call Sushant's sisters or they came on their own?
to take Sushant from your clutches? Here is the question. ये पूछना जरूरी था मिस्टर राजदीप सरदेसाई। सिस्टर्स अपने आप आई थी, आपने नहीं बुलाया था। और मेरा सवाल ये है कि आपने क्यों नहीं बुलाया? आपने क्यों नहीं कंसल्ट करा फैमिली से? आपने क्यों नहीं बात करी उनके फादर से? फादर आपको मैसेजेस कर रहे हैं, मैनेजर को मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे बेटे से बात कराओ। उनको आप इग्नोर कर रहे हैं और यहां आप बोल रहे हैं, अरे मैं तो सिस्टर को जानती भी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक सिस्टर मुंबई में रहती है। प्लीज यार, डोंट गिव मी दिस। आप तो मीतू जी के साथ मेडिटेशन भी आपने एक बार करी है, कह दीजिए ये गलत है। यू हैव डन अ कोर्स एट माउंट ब्लैंक, लेडीज एंड जेंटलमैन। Blatant lie. Please play the video further. Thank you. बट इफ यू लव सुशांत सो मच, वाई डिडंट यू रीच आउट टू द फैमिली? परिवार, अगर आप सुशांत से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश। जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स। अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है। जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, मीतू जी। और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही। मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटरस्टोन में कि जाने दो, जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूँ, 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ। आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटरस्टोन में छोड़ के चली गई उस हालत में। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें, उसे वाटरस्टोन में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना। तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया, क्यों नहीं रोका उसे? रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं दी? जब बॉम्बे आए, उसके साथ कैफे में बैठ के हंस के खाना खाने के बजाय आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी? तो आप कह रही है न केवल आपके रिश्ते सुशांत के फैमिली में बिगड़ गए थे, कहीं सुशांत के भी रिश्ते अपने फैमिली से बिगड़ गए थे? क्योंकि हमारे सामने इतने वीडियोस हैं जहां सब फैमिली एक साथ है, वो अपने बहनों के साथ है, लग रहा है बड़ा नॉर्मल लग रहा है, और सुशांत लुक्स लाइक ही इज हैप्पी, खुश नजर आ रहा है अपने परिवार के साथ। आज आप मुझे कह रही है कि वो रिलेशनशिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है। वो वीडियोस देखकर तो हमें सब लगता है कि नॉर्मल रिलेशनशिप। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। उनकी बहन मीतू जैन में चंडीगढ़ से आने के बाद, उनकी बहन मीतू सुशांत के घर में रह रही थी। मैंने उनके साथ कोशिश भी की, हमने साथ में एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स किया है 6 दिन। अगर उनको मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे साथ 6 दिन पैनकेक्स, पिज्जा और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्यों कर रही थी वो? ये कैसा आइसोलेशन हुआ? एंड द फादर सिंह साहब से? सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते, इन सुशांत वर्ड्स, बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरे सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years। लेट मी कम टू अ क्वेश्चन। एक सवाल मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, डिप्रेशन। अब मुझे आज सच्चाई चाहिए। सुशांत सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या सुशांत की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा? ये कब से डिप्रेशन में चले गए?
All right. So I think Mimia का कोई technical glitch था. That's why she was not able to pause before. It's okay. It's perfectly fine. या Perfectly fine. Hello सिमरन जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रोफेसर जी, ये आप कैसे हैं? आप सिमरन जी देख रही हैं हाँ कैसे जी, स्टेटमेंट को बार बार मेंटल या डिसऑर्डर पे लेके आया जा रहा है, डिप्रेशन पे लेके या आया जा रहा है. बिल्कुल, These are you know what, these are playing with words. कभी वो एब्सोल्युटली, कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सिस्टर्स, एक सिस्टर मुंबई में रह रही है. अभी हम्म, मैंने कुछ देर पहले ये बोला कि आपने तो एक सेशन भी करा था मीतू जी के साथ. अभी इसने फिर बोल दिया, सेम चीज बोली ना. ये मीतू के साथ मैंने एक सेशन करा. सो और कहाँ करा कहाँ करा? माउंट ब्लैंक पे करा. दैट या मीन्स सिस्टर यूज्ड टू बी अ रेगुलर विजिटर एट माउंट ब्लैंक. एग्जैक्टली, द सिस्टर्स, द सिस्टर रानी जी, उनके हस्बैंड और बाकी लोग, इनफैक्ट ये लोग मुंबई आए एंड वी हैव सीन दैट कैफे वीडियो वेयर सुशांत took them to the cafe and had a good time with them, with the family. या So this is an attempt to malign एग्जैक्टली, not only सुशांत, एक डिफरेंस क्रिएट करना कि नहीं नहीं सुशांत के तो कभी क्लोज रिलेशंस थे ही नहीं फैमिली के साथ. या ब्लेटेंट लाई. सुशांत लॉस्ट हिज मदर at a very tender age when I think you know 15 if और I 16, uh, uh, yes, absolutely right. 92 की बात है, I think. If somebody can correct me, शायद मेरी थोड़ा नॉलेज कम है. 92 के आसपास when he या was in the school या time. एंड देखिए ये ब्लेटेंट लाई कैसे बोल रही है कि नो सुशांत के फादर ने उनकी मदर को छोड़ दिया था. और ये अरे कुछ भी मतलब, हैव यू रेड एनी आर्टिकल और एनीवेयर ऑफ सच नेचर? मैंने तो नहीं पढ़ा. प्लीज एनलाइटन मी एनीबॉडी. तो या ये क्या होता है? दिस इज हाउ देयर मोडस ऑपरेंडी. दिस इज हाउ यू प्ले विद वर्ड्स, ट्विस्ट योर वर्ड्स. या यहाँ पर क्वेश्चन सही सही नहीं पूछा जा रहा. हर क्वेश्चन में आप ये देख लेना, हर क्वेश्चन में ये शोकेस करेंगे ये लोग के जिसमें सुशांत विल बी ऑन द डाउन साइड, सुशांत विल बी ऑन द डिप्रेशन साइड, बिकॉज इन्होंने यही चीज जो है ये प्रमोट करनी थी और इसको सती सावित्री बनाना था रिया को. या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग. One thing, Professor G, I would like to correct you there. I may be wrong. She said his dad left him, not mother. He said he was very close to his. She said he was close to his mother, but his dad left him. अच्छा, दोबारा सुनते हैं. मे बी आई एम रॉन्ग. Can we play मीमिया, कैन यू again? प्ले दैट पार्ट अगेन? शायद मुझसे गलती हुई हो. No, it's okay. We're Yeah. human. And I've sent her full version as well. If we can do it from the beginning, because that's a part of in the middle of the interview. So I have sent her full interview. So if she can play from the beginning, that would be good. But if you love Sushant so much, why didn't you reach out to the family? परिवार, अगर आप सुशांत से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश. जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स. अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था. मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है. जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, मीतू जी. और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही. मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटरस्टोन में कि जाने दो, जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है. आप आए, बहुत अच्छा हुआ. मैं यही तो सोच रही हूँ. 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ. आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटरस्टोन में छोड़ के चली गई उस हालत में. अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें उसे वाटरस्टोन में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना. तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया, क्यों नहीं रोका उसे? रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं दी?
जब बॉम्बे आए उसके साथ कैफे में बैठ के हंस के खाना खाने के बजाय आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी? तो आप कह रही है न केवल आपके रिश्ते सुशांत के फैमिली में बिगड़ गए थे, कहीं सुशांत के भी रिश्ते अपने फैमिली से बिगड़ गए थे, क्योंकि हमारे सामने इतने वीडियोस हैं जहां सब फैमिली एक साथ है, वो अपने बहनों के साथ है, लग रहा है बड़ा नॉर्मल लग रहा है, और सुशांत लुक्स लाइक ही इज हैप्पी, खुश नजर आ रहा है अपने परिवार के साथ। आज आप मुझे कह रही है कि वो रिलेशनशिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है। वो वीडियोस देखकर तो हमें सब लगता है कि नॉर्मल रिलेशनशिप। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। उनकी बहन मीतू जैन में चंडीगढ़ से आने के बाद उनकी बहन मीतू सुशांत के घर में रह रही थी। मैंने उनके साथ कोशिश भी की, हमने साथ में एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स किया है 6 दिन। अगर उनको मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे साथ 6 दिन पैनकेक्स, पिज्जा और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्यों कर रही थी वो? ये कैसा आइसोलेशन हुआ? एंड द फादर सिंह साहब से? सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years। लेट मी कम टू अ क्वेश्चन। एक सवाल मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, डिप्रेशन। अब मुझे आज सच्चाई चाहिए। वॉज सुशांत सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या सुशांत की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा? ये कब से डिप्रेशन में चले गए? क्योंकि ये सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई सुशांत बाइपोलर ट्रीटमेंट के लिए इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था? क्या जरूरत थी, या आप उनको कह रही थी नहीं सुशांत यू आर डिप्रेस, और उनको इन डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही थी, जबरदस्ती लेकर जा रही थी? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अगर आप अभी इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं मेरे पे, अगर सब मुझे इतना ही मतलबी समझते हैं, तो मेरी तो पिक्चर है सुशांत के साथ। हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पिक्चर। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ये पिक्चर हो? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ सही हो उसमें? मेरा प्यार और मेरा कोस्टार दोनों साथ ही साथ कमाल हो उस फिल्म में। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर करसी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी है। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर करसी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, yes or no, depending on the interaction। मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स, मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शंस वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। डिड यू फाइंड द डॉक्टर फॉर सुशांत? नो, आई डिडंट। कि सुशांत आप के मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ, वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर करसी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला, अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद
किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013 और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी जी। और उनकी जो मदर हैं जो हु पास्ट अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। ये मेंटल हेल्थ की वजह This is quite strange. I mean, where do I start? If सिमरन जी आपने सुना, उन्होंने कहा ना जी कि Rhea played with words, and yeah she says that Sushant did not have good terms with the father because the father left the mother, hmm. and that's why. This is blatant lie, Hmm. absolutely lie. I mean, कहाँ से ये स्टोरियां, मतलब stories लेके आ रही है? Only God knows. Very interesting thing. The most interesting part is that Sushant was supposed to go to Abu Dhabi for a show. I'm talking about 2019 सिमरन जी, ठीक है? yeah अब हुआ क्या कि वो बीमार हो गया। वो उसको आई थिंक मैं नाम भूल गया उसको, क्या होता है? dengue डेंगू। थैंक यू सो मच। no सो worries डेंगू हो गया, और वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लेकिन ये रिया ने नहीं बोला। hmm. आप समझ रहे हो? yeah अब आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अ पेशेंट हु इज एडमिटेड इन हिंदुजा हॉस्पिटल और वो डेंगू से लड़ रहा है, होता क्या है? और द सेम टाइम श्रुति मोदी, रिया hmm. along with Shruti Modi approaches Karsi Chavda yeah and says, "Oh, sir, you have to visit the room. You have to look at Sushant Singh Rajput also." At the same time, Sushant को बोला होगा कि Sushant ऐसा है, doctors will come. He'll just check whether you have anxiety or nothing wrong. yeah Pamper करके और on India today. very interesting thing is, where is the record? आप आप लोगों को समझने की जरूरत है। A man who is already in Hinduja hospital for a treatment of dengue. अब सपोज करिए कि मैं हूँ हॉस्पिटल में हूँ and I'm lying down. Hospital dengue obviously makes a person weak. I don't know who all people are coming in and out, and my friends come and say कि यार ऐसा है, you feeling low, you feeling sad. There is no harm since we are already in the hospital. Karsi Chavda will also come and see you. इसमें क्या फर्क पड़ता है? Sushant being Sushant, he says, he would have said, okay. Point to note is that first Sushant refused. ये किसी को नहीं पता, प्लीज गूगल करिए, सर्च करिए, मेरे पे बिलीव मत करिए, गूगल करिए और सर्च करिए. He refused, so Shruti Modi cancelled the appointment of Karsi Chavda. And on the same day, again, वो होता yeah है ना, मैनिपुलेट करके उसको समझा दिया होगा कि नहीं नहीं तुमने तो मिलना ही होगा, मिलने में क्या प्रॉब्लम है. So the very next day, I think it was 28th or 29th of November, again Shruti Modi herself makes sure that she does not take the appointment on phone. She approaches Karsi Chavda personally. Personally वो जाते हैं और करसी चावड़ा को मिलने के, भाई सुशांत कह रहे हैं कि उन्होंने मिलना है आपसे. hmm. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये मैनिपुलेशन कैसे चल रही है? एक तरफ सुशांत को एक स्टोरी बताई जा रही है और दूसरी तरफ करसी चावड़ा को बोला जा रहा है कि सुशांत वांट्स टू मीट यू. तो उस Yeah. केस में क्या होगा? Obviously a superstar is calling a doctor, and Karsi Chavda is also a famous doctor, right? yeah So I said, okay, fine. If the manager of Sushant Singh Rajput is come personally and मुझे बुलाया है तो चले जाते हैं. But at the back end, people need to understand this. They were making a record of all this. They wanted a record. yeah And record of what? Of his depression.
Yeah. एक चीज जो सुशांत में कभी थी नहीं. ठीक है, देखिए ऐसा होता है सिमरन जी, एंजाइटी क्या होती है, मतलब हमें भी आ सकती है किसी दिन, वी हैव अ ऑड इवेंट, Yeah. एकदम से वी फील अ लिटिल स्ट्रेस्ड आउट, वो थोड़ा एंजाइटी किक इन कर लेती है. Yeah. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो बोल रही है रिया, दैट ही हैड डिप्रेशन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. अरे भाई, bipolar depression of such magnitude, and the guy is giving hits after hits. Yeah. A guy is maintaining his fitness to that extent, to perfection. कोई मुझे बता दे यार, बता दो कैसे होता है ये. मैंने नहीं देखा ना, मैंने पढ़ा है कभी. I fail to understand. So it's an attempt, very carefully orchestrated, कि चलो ऐसा है, वो ये एंगल बीच में ले आते हैं. Yeah. हर चीज में वो हमेशा यही बोलेगी, सुशांत ने मुझे बताया था, सुशांत ने बोला था. अब बिकॉज सुशांत तो है नहीं, Yeah. ठीक है, तो उसको वैलिडेट कौन करेगा. बट Yeah. सच्चाई जो भी होती है वो बाहर तो आती है. सिमरन जी, मेरा सवाल सिर्फ बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है. भूल जाइए इस केस को. हमारे समाज में अगर दो लोगों की शादी होती है और अगर वो किसी कारण टूट जाती है या कोई किसी को छोड़ देता है, तो वो चीज आग की तरह फैलती है. Am I wrong? Absolutely right. Especially celebrity के साथ तो yeah. हाँ, absolutely. That is the word I was looking for. और ऊपर से सेलिब्रिटी के अगर परिवार में ऐसा कुछ हो तो वो तो आग की तरह फैलती है. और लोगों को तो, रिश्तेदारों को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है जी बात करने का. Exactly. सुशांत के ऊपर कोई आर्टिकल आप मुझे दिखा दो जहां पर ये लिखा हो दैट सुशांत फादर हैड सम डिफरेंसेस विद हिज मदर. कहीं भी नहीं है. तो ये एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड स्टोरी जस्ट टू क्रिएट अ डाउट इन पीपल्स माइंड. और इस मूवमेंट में भाइयों बहनों 2020 में एग्जैक्टली यही हुआ. पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. अभी भी मेरे पास डीएम है, मैं हैंडल का नाम नहीं लूंगा, एक ही हैंडल. एंड दैट हैंडल स्टार्टेड राइटिंग अगेंस्ट द फैमिली. नॉट against in the sense, maybe the handle did not know, but writing के यार वो तो हमने सुना है कि सुशांत के फैमिली में ऐसा चल रहा था, father did not have were in good terms with Sushant's mother or you. And I was like, where are you getting all this information? This is absolutely wrong. आप ये मत बिलीव करिए जो रिया चक्रवर्ती कह रही है, प्लीज. थोड़ा रिसर्च करिए. तो ऐसी, this is exactly what happened in that interview. Right from the beginning, stories, playing with words, यही चल रहा था. Yeah, if you see the body language, her face expression, her eyes, when she was talking, she wasn't looking at RajDeep, Sardesai. क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है, that person either looking somewhere else, like not eye to eye contact. And also if you see uske hands movement kitne ho rahe the, because obviously she know that she's lying, right? So uske hand movements bhi bahut ho rahe the. बहुत कुछ लोगों की हैबिट होती है, लेकिन इसका पता चल रहा है ये बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट इसका हो रहा है. So you can tell that she's lying for every single word she was talking about SSR or SSR family. Absolutely wrong, absolutely fake narrative. So yeah, absolutely. Very interesting thing. अभी और इंटरव्यू तो बहुत लंबी है, बट मीमिया वांट्स टू प्ले अ विकास सिंह जी वीडियो. सो हाँ मीमिया, आप प्ले करो बेटा, कोई बात प्ले करो. Condition, which is again available with the authorities. And the sad part, Rahul, is that this is a problem that no one wants to confront. It's one of those dark secrets that we don't want to put before people when someone could be suffering from something like bipolar disease. Now, this is, forget Rhea, forget Sushant's family. These are three independent psychiatrists who have given detailed reports. Where
Where she is evasive, I think, at the moment is a lack of clarity on the WhatsApp conversations when it comes, for example, to allegations of drug dealing, which have only now come. And I think where the story really, and this is where Vikas Singh may have to answer, she claims she left on the 8th of June, which she did. From the 9th to the 13th, Rahul, it was Sushant's sister who was staying with Sushant. Okay. And therefore, if Sushant commits suicide or whatever happens on 14, the sister will also have to answer some very, very grave questions. Okay, stay with as to me, what RajDeep. was she doing between the 9th and 13th? I want to put some of these questions to one of India's top, most acclaimed lawyers. Vikas Singh has been the face of the Sushant family, and he's now live with us on this broadcast. He listened to the interview through and through, and now, and he's also had an opportunity to take feedback from the SSR family, and he'll put that for us. I want to start by asking you, Mr. Vikas Singh, your overall impressions of the interview, point number one. Point number two, about the fact that Rhea Chakraborty says that she left Sushant's residence on the 8th of June. Now, in that last week, leading up to Sushant's mysterious death on the 14th of June, Rhea Chakraborty is not in touch with Sushant except for one exchange that they have in a message that he apparently sent to Rhea's brother. That apart, there is no conversation. And when the death took place, now whether this is homicide or suicide, Rhea Chakraborty wasn't there. You've been on my show. You've accused Rhea Chakraborty of having murdered Sushant Singh Rajput. You've asked for the CBI and the ED to arrest Rhea Chakraborty. Can you square the two? Because if you've murdered someone, you need to be physically present at the site of their death when this alleged murder took place. If she's not even in touch in that last week, the sister, Meetu, is the one who's in the house. She's there when the body is brought down. Nobody says anything about Rhea being present. Why then do you still believe, Mr. Vikas Singh, that Rhea Chakraborty is guilty of having murdered her boyfriend, Sushant Singh Rajput? Well, Rahul, either you are naive or you and RajDeep both are very naive. I mean, this is not even the charge that she was there at the home. The charge is, and please appreciate what the charge is. The charge is that in a abetment to suicide, it is not that you actually make the person hang and commit suicide. That's never the charge in an abetment to suicide. In an abetment to suicide, it's a bundle of facts or a bundle of circumstances which lead somebody to commit suicide. Now that bundle of facts are what? I'm sorry to say this, RajDeep is on your show. RajDeep did not ask any uncomfortable question to her. And that's what I expected a responsible journalist like him to do. He was asking That is a soft very questions. unfair It was charge, as if, but I will let it he had pass. told That the is a questions very to her. unfair charge, but you are entitled to it. RajDeep, please, I didn't You are, interrupt when you are Raj- obviously... No, you it's and a, I- it's you a, and I I'll prove obviously it. heard this. RajDeep, because this will degenerate very quickly. You Okay. have no On reason this to show, justify I'm the moderator. Both traders go down. RajDeep, if you jump in like this, I don't allow this to any other guest, and we must follow the same protocols. This conversation will degenerate very quickly. We're trying to make sense, not noise. Vikas Singh, you will have your say, and then RajDeep will counter what you're saying. Go ahead, Vikas Singh. Rahul, if you want my view, then please ask RajDeep to not interrupt. Otherwise, I just did. I'd rather leave the show and go. I don't want to start. I don't want to participate. Okay. Yes. So let him hear something uncomfortable also. His show was a show which actually didn't ask any of the questions which are there in the FIR. Now I'll come to point wise on those questions. What does the FIR say? The FIR says that you cut off the family. No questions asked. The FIR says that you used his money. No questions asked, and now he's trying to justify by saying that ED has found nothing. Is he the representative of the ED on this show today? Is he here to say that he has seen what the ED has found? I don't want to say what all the ED has found because it is something which is part of an investigation, ongoing investigation, and let the ED take a call of what exactly is found or not found. It is not as if these transactions are not as if money goes from X account to Y account and then only it's money laundering. Money laundering can be in several ways. You may withdraw cash from the account and keep accumulating that money. A girl who has had only 40 lakhs as her annual expenditure, if there is 60, 70 or 80 lakhs cash withdrawal from the account in the year, in which there is supposed to be for office expenses when there was no office running, then that money is clearly laundered money.
So RajDeep is nobody to comment that there is no money found in her account. Now, my lord, the third most difficult question that he missed out completely. No, I'll come to what you said. Please, RajDeep, don't interrupt. When the so-called medical condition was revealed for the first time, I mean, Rhea also doesn't say that it was there before she joined him. Rhea also doesn't say that she had it, Rajput was suffering, Sushant was suffering from medical condition when She met does. him She in says April. that he was consulting She with a says doctor that in for the first time 2013. it surfaced in September. No, she says that he consulted with a psychiatrist in 13 2013. is She not names something the what I'm talking psychiatrist. about. 13 there may be some stray incident. I'm not talking of Rahul. I'm not talking of a stray incident. I'm talking of in 19 when she met him in April. There was nothing for her to suspect that he was in a medical condition. The first time, according to her in this interview, she came to know about a medical condition only when she was in that holiday with him in that palatial hotel where he was living life king size and she was enjoying the life king size with him. And there she saw these paintings, and that is how this whole thing erupted. Now, why it has been put up, I'll tell you. Because there is a medical condition which says that this kind of, and the timing of this revelation is one day after the drug theory comes in, that she was controlling his mind by the drug. Now, please see the next point. When she comes back to India, is it not her duty to inform the family that this is a very serious medical condition that Sushant has developed in this holiday? Treatment. What was her capacity as a live-in partner to take care to ensure that she will take care of him all his life? Rahul, if you are in love with somebody and if you are in a live-in relationship, when there is a breakup, you come and say, I want alimony. And courts have also granted you alimony in some cases. But when a person goes, has some mental issue. Are we done with the video? I really want to understand. ये राजदीप सरदेसाई को ये बना कैसे, मतलब न्यूज रिपोर्टर? इसको केस के बारे में जीरो नॉलेज है. वो कहता है कि सुशांत की बहन जो थी, she was there from the 9th till the 13th. अरे भाई, she came on the 8th evening and left on 12th evening. इतना तो अगर स्कूल के बच्चे को भी पूछ लोगे ना कि बेटा इधर आओ, सुशांत सिंह राजपूत को जानते हो, उनके केस के, वो भी बता देगा कि बहन कब आई थी और कब गई थी. बट दिस ढक्कन, he has no idea. Yeah. 9th and 13th वहां अटका हुआ है. And there is some Kanwal also there. He also said something. I forgot. मैं भूल गया वो क्या कहा था. Anyways, I mean, these guys are somehow trying to portray Rhea in a good light. Yeah. और वो विकास सिंह जी कह रहे हैं ना, are you representative of ED? ED, On what capacity are you saying? बड़ा सिंपल है ना, मतलब सुशांत के का पैसा था. We are not talking about thousands or lakhs. We are talking about an amount which are in crores. कहाँ गया? कहाँ गया? It cannot just disappear in thin air. It has to go somewhere. Na? Somebody has taken that money. And who was the person who was controlling the finances that time? It was Rhea Chakraborty. She had full control. Yeah. I mean, we have seen the Joe statement where you can see that she paid for the parlor and also for the holidays for her brother tuition as well, tuition fees, and many other things. And somewhere I heard that she also used to eat dry fruits for I don't know how many in kilos घर में आते थे, like dry fruit in kilos, not 1 kilo 2 kilo, like in huge amount of like. तो ऐसा लगता है like मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग या स्नैक्स जो उसके होते थे वो सिर्फ ड्राई नट से ही होते थे, या मे बी शी इज फिलिंग हर पेरेंट्स हाउस विद द ड्राई नट्स कि ठीक है यू नो आई विल कम बैक तो मैं ये खाऊंगी, इनको बचा के रखना है, यू नो इट्स लाइक स्टोरेज बना रखा था.
Like, where the hell all those dry food gone? Where the hell all those money gone? Jo, and then she lied. If I don't know, if she will play, Mimia will play that part where she was saying कि सुशांत ने मेरे को दिए थे लेकिन मैंने उसको वापस कर दिए थे. Seriously, if you're claiming him your boyfriend or your partner, living partner, then you don't give your partner anything back, like, because obviously you do something for your partner. आप भी उसके लिए कुछ कर सकते हो, वो आपके लिए कर रहा है. That's how the partners are, you know. You don't you don't borrow money, or you don't say कि मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, मेरे पास है नहीं और मैं आपको वापस करूंगी. It doesn't work like that. So I'm sure कि यहाँ जितने सुन रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं या कपल्स हैं, like boyfriend girlfriend, so you buy gifts for your partner, you buy gifts for your wife or husband or boyfriend and girlfriend. You don't ask or you don't return money कि ओके आपने मेरे लिए ये गिफ्ट बाय किया, मैं इसका आपको पैसे देती हूँ. व्हाट नॉनसेंस. सो Very interesting. Simranji, very interesting thing is that the other reporter, Mr. Kanwal, Mr. Rahul Kanwal says, "Arey, for a murder, she has to be present there." On what capacity are you saying? Are you so dumb? For example, if I hire a professional to kill somebody, and if he gets caught, who gets caught? I also get caught because I am the person who hired that professional to kill. Yeah. Is he so dumb, or is he trying to pretend to be absent minded? अरे यार ये तो सिंपल है यार, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो यार. मतलब इतना बड़े चैनल पे ये लोग बैठ के they try to play with people's mind, manipulate. This is how exactly what these two buffoons have been doing in this case. Exactly. Very interesting thing Vikas Singh ji said, and I talked about it in the initial live also. मैंने exactly same words कहे जो विकास सिंह जी ने कहे थे कि भाई अगर सुशांत बीमार था और आप बार बार ये बोले जा रही हैं कि उसको डिप्रेशन था, तो आपने why didn't you get in touch with the family? Why didn't you tell the family? Why didn't you say कि this is the doctor who has been called, ये नंबर है उसका. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मेरा दोस्त बीमार हो जाएगा तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, साथ साथ में फैमिली को भी फोन करूंगा और बोलूंगा जी ऐसा है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द डॉक्टर, ये आप प्लीज आ जाइए. बट शी केप्ट द एंटायर फैमिली, द एंटायर वर्ल्ड अवे फ्रॉम सुशांत. बट ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए रिया जी को. रिया जी इसलिए कह रहा हूं बिकॉज उनके लिए जी थी वो. दिया उसको पता क्या है, उसको बैठा दिया अपने सर पे. मैं तो कहता हूँ उसको ऑस्कर अवार्ड दे दो फॉर हर परफॉर्मेंस. जो उसने वीडियो बनाया था ना इनिशियली, वो सफेद सूट में और हाथ जोड़ के, और मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ. कहाँ गई वो रिक्वेस्ट? आज क्यों नहीं वीडियो बन रहे? आज क्यों नहीं वीडियो बना रही वो और बोल रही कि सीबीआई जवाब दो फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्यों नहीं लड़ रही? अगर चलो आपका जो भी है, आप ही ने रिक्वेस्ट करी थी ना सीबीआई के लिए, आप ही ने हाथ जोड़ के वो वीडियो बनाया था, क्यों नहीं आप लड़ रही? क्यों नहीं आप 14? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. मैं इंसान को जज करता हूं उसके एक्शन से, सिमरन जी. मेरे को ये बात बिल्कुल शुरू से 2020 से ही समझ नहीं आई that why did Rhea Chakraborty did not go to Mont Blanc on the 14th? That's true. Why did Rhea Chakraborty did not go and attend that funeral on the 15th? Yep. And please, वो जो excuses दे रही है, because family never wanted, to hell with the world. अगर तुम कहती हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तो to hell with the world. You should have been the first person. Exactly. At Mont Blanc or at the cremation as well. Yeah. आपके पास टाइम था चोरों की तरह छुप छुप के मॉर्चरी जाना पीछे के दरवाजे से. वो तो कैमरा वाले ने और मीडिया वालों ने वो कवरेज ले ली. अदरवाइज ये तो घूंघट निकाल के अपना घुस गई थी अंदर पूरे परिवार के साथ और वहीं से बाहर आ गई थी. साथ में वो नौटंकी भी था, क्या नाम है उसका, सुरजीत सिंह राठौर. एंड युवराज सिंह एंड दैट प्रोड्यूसर लेडी नंदनी, उसका भाई, उसकी माताजी, उसका पिताजी.
Yeah. You know, isn't it strange कि यार आपके पास टाइम नहीं है, वो बॉडी को आप उसकी बॉडी को देखने जा रहे हो, बट आप क्रिमिनेशन पे नहीं जा रहे। Mm. स्ट्रेंजेस्ट पार्ट ये, लेकिन ये सवाल नहीं पूछेंगे वो। ये क्यों पूछेंगे भाई? व्हाई विल दे कीप रिया इन द बैड लाइट? बिकॉज Yeah. उसके कबाल वालों ने तो पैसे दिए। हम तो लॉजिक में बात करते हैं। Yeah. जो लड़की इंटरव्यू में ये कह रही है कि मेरे अकाउंट में तो 40,000 रुपया है, वो देश का सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स, हाउ इज शी एबल टू अफोर्ड? मुझे कोई ये बता दे कि Exactly. पीयूष मानचंडे को वो कैसे अफोर्ड कर रहे? आई डोंट अंडरस्टैंड। Yeah, that's a good question. I mean, definitely, like how she's affording him. इतना महंगा है. Like I think in lakhs he take his fees, isn't it, for an hour or something? Wow. और क्या इंटरेस्टिंग बात है जी। पीआर के सरताज, शहंशाहों के शहंशाह, गुनाहों के गुनाहगार, बंटी सचदे के साथ इनका अफेयर है। Oh yeah. और ये पहले से ही था। हम 2020 2021 आई थिंक 2021 यस 2021 से ये बात कर रहे हैं, ये साथ में है, ये साथ में है, ये साथ में है। और अब न्यूज भी ब्रेक आउट हो गई दैट रिया चक्रवर्ती इज विद बंटी सचदे। अरे जब हम ढोल बजा रहे थे तब कोई सुन नहीं रहा था। Yeah. These people right from the beginning have been together, planning, plotting, executing the entire show. Show मैं इसलिए कहता हूँ because for them it is a show only. Yeah. घुमा रहे हैं, मतलब लोगों को घुमा रहे हैं। Of course he was called for the inquiry. He's a part of the conspiracy. He's the one who's pulling the strings. Along with others, he's one of the persons who's pulling the strings. Yeah. Interesting part. रिया चक्रवर्ती वहां पर नहीं थी तो वो कैसे हो सकती है? और साथ में वेरी केयरफुली ही यूज्ड द वर्ड सुसाइड। कैसे पता आपको मिस्टर राजदीप सरदेसाई? अरे इसकी घर की घंटी बजा के इससे पूछना चाहिए, बाहर निकल भाई, हाँ सामने बैठ और ये समझा कि तुझे कैसे मालूम कि दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड? हाउ डू यू नो? नहीं, एंड सीबीआई इज इन्वेस्ट। प्रोफेसर एक चीज मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि when राहुल said and सरदेसाई said कि रिया वहां पे नहीं थी जब वो उसकी डेथ हुई, तो क्या जो मारेगा वो वहीं पे वेट करेगा कि मेरे को मतलब ये जब न्यूज बाहर आए, पुलिस आएगी, वो मुझे पकड़ के लेके जाएगी? एग्जैक्टली, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब हंसने वाली बात नहीं है। रिया वहां खड़ी रहेगी कि आओ आओ मुझे पकड़ो। And they are dumbheads, honestly, and have no other words. Very interesting. The next question asked to her, Aditya Thackeray, see her body language coming up next. Mimia, go ahead and play. मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का कनेक्शन आपके साथ है, वो एक तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल प्रेशर लाया गया मुंबई पुलिस पर। आप आदित्य ठाकरे से मिली हैं या नहीं? मैं आज तक अपनी जिंदगी में उनसे ना मिली हूं, ना उनसे मेरी कभी बात हुई है, ना फोन पे, ना मेरे पास उनका नंबर है, और कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। मैं तो बोल रही हूँ सरेआम कि प्लीज मुझे कोई प्रोटेक्ट करो। मेरी जिंदगी तहस नहस हो रही है, मेरी फैमिली खराब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, मुझे कोई तो प्रोटेक्ट करो। मेरे पे ये एलिगेशंस जो लग रहे हैं, ना मैं आदित्य ठाकरे जी को बिल्कुल भी जानती हूँ और ना उनका कोई लेना देना, क्योंकि ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे सूरज पंचोली का कनेक्शन कहीं दिशा सालियान के मर्डर से, या ये कहा जा रहा है कि सुसाइड जो हुआ उसे मर्डर कहा जा रहा है, उनका कनेक्शन वहां है और वो भी सुशांत के केस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुशांत को जानकारी मिलती है दिशा सालियान के सुसाइड के बारे में। जो कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर था, सुसाइड नहीं, या शायद उनका, और उसके बाद ये कहा जा रहा है ये सब सुशांत को चुप करने के लिए ये साजिश रची गई। आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया
नारायण राणे ने लिया है, जो महाराष्ट्र के नेता है, मैं नहीं ले रहा, उन्होंने लिया है। आप इन नेताओं को जानती है? आपके क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस है रिया? मेरे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन किसी को नहीं जानती? मैं किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानती हूँ। मेरे कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है। मैंने किसी से ना कभी बात की है, ना मिली हूँ। सिर्फ टीवी पे ही देखा है, और जो देखा है उतना ही पता है मुझे। तो दे दो सिमरन जी, मैं तो कहता हूँ इस लड़की को अवार्ड दे दो, ऑस्कर दे दो, साथ में सरदेसाई को भी, सरदेसाई को दे दो, नेशनल अवार्ड दे दो उसको। मतलब ये लोग ऐसे 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 दे दो, ऐसे साधु और संत बैठे जैसे ओ भाई इन्होंने कभी जिंदगी में किसी मच्छर को भी नहीं मारा होगा। ब्लेटेंट लाइज। मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूँ, मैं तो अरे भाई, इज इट पॉसिबल? तो फिर वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है, सीआर जो है, जिसमें हमने एयू का नाम देखा है, वो एयू कौन है? अब ये बता दो फिर। अगर एयू, सिमरन जी, वो एयू जो है वो अनन्या उदास है। वो देखिए, बाकी जो लोग हैं ना जो एयू के बारे में बोलते रहते हैं, आपको पता है कौन वो जो लोग हैं जो भी हैं, उनको रहने दीजिए। वो अच्छा, दैट एयू स्टैंड्स फॉर अनन्या उदास, शी इज अ फ्रेंड ऑफ रिया। देखिए, जो Okay. सही है वो सही है, हम लोग हमेशा उस पे बात करेंगे जो फैक्ट्स हैं। ओके, अभी इसको भी मैं खोल देता हूँ, अभी खोल देता हूँ। सपोज करिए कि यू आर वर्किंग इन एन टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, राइट, और आप अपने एरिया का कस्टमर डाटा का प्रिंट आउट निकालते हैं, और मेरा उसमें टेलीफोन नंबर होता है। राइट। तो क्या डेटा में क्या आएगा? टीपी आएगा कि पूरा नाम आएगा, द प्रोफेसर? टीपी आएगा? नहीं, टीपी नहीं आएगा मैडम, नहीं, द प्रोफेसर आएगा ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई डेटा निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली देखिए, जब आप सिम खरीदने जाती हैं या एयरटेल में, सपोज करो आप सिम खरीदने जा रही हैं एयरटेल में, तो एयरटेल आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, या अपने सिस्टम में लॉग इन करता है। या तो जब जब प्रिंट आउट लेंगे तो लोकेलिटी पूरा का, नाम आएगा, यस, तो पूरा नाम आएगा, पूरा नाम, या एड्रेस और वो सारा कुछ आएगा। या अभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा, टीपी, एयू, ये सब नहीं आएगा। ये हाँ, सब कुछ फैब्रिकेटेड है। ओके, एंड पर्सनली काफी बार पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल सर्च करिए, एयू इज अनन्या उदास, इसके राइट, बारे में बात कर चुके हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस मूवमेंट who wants to prove a point, who wants to sensationalize things. AU, AU का मतलब वो, भाई देखिए, हमने जो रास्ता लिया है वो रास्ता है कि भाई जो फैक्ट्स हैं हम उन पे बात करेंगे, या जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। या We will not talk on things which are made up or speculate or assume अपनी तरफ से। या So of course, it's an Oscar-winning performance by the accused number one, and she's doing it for a purpose. भाई, अब उसको भी तो अपनी जान बचानी है। क्या या आप लोग भूल गए कि उसने उसी की स्टेटमेंट थी कि अगर मैं गई तो साथ में लेके डूबूंगी। या बिल्कुल सही। So blatant lies coming from Rhea. आप उसकी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीच में जब उसका पासपोर्ट सीज हो गया था, ये बेल से छूट के बाहर आई, तो इसको दुबई जाना था एक फंक्शन के लिए, आईफा अवार्ड्स से। सिमरन जी, आपको याद होगा, या आईफा अवार्ड्स के लिए इसने अप्लाई करा। कोर्ट ने दे दिया, लेकिन ये गई नहीं, गई या गई नहीं मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो। नहीं गई थी। ओके, सो एनीवेज, क्या आप लोगों को मालूम है कि इसने अपने रिक्वेस्ट के लिए क्या लिखा था? इसने अपने रिक्वेस्ट के लिए लिखा था कि ऐसा है कि माय फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन मी फाइनेंशियली, सो आई हैव टू वर्क। अब मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी एक झूठ है, या बिकॉज उनके जो फादर हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, डॉक्टर हैं, आर्मी से रिटायर हुए हैं, या तो उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, और वो एब्सोल्युटली, पेंशन इज अबव 1 लाख,
I think 1,25,000 या 35,000. All right. So that is the amount he gets. तो ऐसा ऐसे झूठ जो है, बट ये लोगों को मालूम नहीं है, बिकॉज लिमिटेड लोग होंगे जो थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे. लोग सोचेंगे ओहो बेचारी. ये हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, बेचारा और बेचारी, ये दो वर्ड्स मतलब मेरे को सबसे ज्यादा गंदे लगते हैं जब लोग यूज करते हैं ना, बेचारा और बेचारी. पर प्रोफेसर जी ये तो सबको पता होना चाहिए ना. आई मीन दिस इज लाइक जो भी काम करता है, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कैसी भी जॉब होती है, पेंशन तो हर एक उसमें मिलती है, हर एक कंपनी में, अपार्ट फ्रॉम इफ यू वर्किंग इन सम काइंड ऑफ जो लाइक शॉप्स हैं, छोटे छोटे जो रिटेल शॉप्स होती हैं, हाँ वहाँ पे तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी. बट लाइक वर्किंग जो होता है, लाइक ऑफिस वर्क होता है या गवर्नमेंट का होता है कुछ भी, तो वहाँ तो पेंशन डेफिनेटली मिलती होगी, या इंडिया का सिस्टम कुछ अलग है? नहीं देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पेंशन मिलती है, प्राइवेट Okay. सेक्टर्स में देयर इज नो पेंशन. Oh, right. देयर आर बेनिफिट्स इन प्राइवेट सेक्टर, Uh-huh. बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन होती है सिर्फ. यहाँ हिंदुस्तान में तो यही रूल है जी. Oh, right. So no wonder why everybody like fight for government job rather than working in private job. Okay, makes sense. Yeah. So they have their own pros and cons, private Hmm. sectors and government. So both have their pros and cons. But that's Yeah. discussion for another day. Yeah. ये मीमिया एक और वीडियो प्ले करने वाली है. आई डोंट नो, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के. तो मीमिया जी, कह रहे हैं आप आप प्ले करिए. जस्टिस फॉर सुशांत की अब तक बात हो रही है, आज आप जस्टिस फॉर रिया की बात कर रहे हैं, जी, राइट? एब्सोल्युटली. ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप किसी को खो दें और आप रो भी ना सकें? नहीं, आप रो भी ना सकें, आप बैक टू बैक इन्वेस्टिगेशंस में हैं और एक के बाद एक आप पे केसेस फाइल किए जा रहे हैं बेबुनियाद, बिना किसी प्रूफ के. क्यों किए जा रहे हैं? क्या है? क्यों लगता है आपको कि किए जा रहे हैं? इट्स अ विच हंट. आप लड़की हो, आप थी, वो बड़ा स्टार था, तो आप तो वही हो, मैनिपुलेटिव हो. किसी ने तो मुझे मेरी औकात भी बताई है कि मेरी औकात ही क्या है. मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूँ. किसी ने तो मुझे विश कन्या भी बुलाया है. किसी ने कहा है मैं ब्लैक मैजिक करती हूं. उन्हें कैसे पता? क्यों? क्योंकि मेरे पार्टनर को एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए आई सीक्ड मेडिकल हेल्प. आप मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए कि अगर आपके पार्टनर को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी तकलीफ होगी तो आप क्या करेंगे? उसे बेस्ट डॉक्टर्स के पास ही ले जाएंगे ना. हर कोई लेकिन मान रहा है कि क्योंकि ये जिस तरह से नैरेटिव बनी है कि मौत के पीछे अगर कोई राज हो या कोई बता सकता है, वो आज रिया ही बता सकती है. इसलिए आपसे एक तरह से जानना जरूरी है कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ 8 और 14 के बीच? मैं जानना चाहती हूँ और मैं उनकी बहन मीतू जी से जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको जरूर बताया होगा अगर तो कोई बात उन्हें तंग कर रही होगी या अगर उन्हें लग रहा था उनके पीछे कोई लोग हैं, तो वो क्या चीजें हुई, वो क्या इंसिडेंट्स हुए दिशा सालियान के डेथ से, कि उनको क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्या है ये सब जो न्यूज में आ रहा है. मैं खुद यही सवाल पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों में. What is your version of the truth? Or you don't know? You just want to know what happened? I want to know what happened. I want to know what happened. Oscar winning performance. भांडूप अवार्ड. प्लीज गिव भांडूप अवार्ड टू रिया. अभी दे दीजिए, नाम लिख के फूल मालाओं के साथ उनको अवार्ड दे दीजिए. So basically this guy was putting word in her mouth. Exactly. कि What is the truth? फिर उसको बोलते हैं अच्छा वो घबरा गई. लास्ट पार्ट में वही था, बट फर्स्ट पार्ट में ये था कि अगेन शी सेइंग oh even I want to know what happened with Sushant. अच्छा, very interesting part is that Rhea left Sushant's place on the
8th itself उसके बाद रिया ब्लॉक्स सुशांत सिंह राजपूत. Yeah. इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है कि इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था सुशांत शोविक उसके फादर और मदर के साथ. अब ये डिटेल्स भी पता होनी चाहिए लोगों को, जहां पर सुशांत ने इज इंटरैक्टिंग विद शोविक, आस्किंग कि भाई हाउ इज रिया, नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स नहीं करते आपस में. Yeah. सो ऑब्वियसली शी नोज. तो माय क्वेश्चन इज दैट थ्रू शोविक और थ्रू एनीबडी यू आर इन टच विद सुशांत. तो आज अब आप ये बोलते हो कि मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. You are wrong here. She's lying here when she's saying that. And if you were so concerned, why did you block Sushant? On the 8th itself, ऐसा भी क्या हो गया? एक तरफ आप नीरज को बोल रहे हो कि मेरे सिर्फ नॉर्मल कपड़े पैक कर दो, पूरे कपड़े नहीं, जस्ट रेगुलर कपड़े, बाकी मैं आके देख लूंगी. This is one thing before she leaves Mount Blanc. What is the intention? Obviously of coming back. Coming back, yeah. ठीक है. On one side you are blocking, on one side the WhatsApp family of Rhea is there and they are communicating. Are you understanding? Yeah. That is why I again and again say this, that she along with RajDeep Desai is playing with words. वो बार बार अब केयरफुली ऑब्जर्व कि सारा कुछ किस पे डाल रहे हैं. अरे सिस्टर से पूछ लीजिए, सिस्टर थी, मैं तो चली गई थी 8 को, उसके बाद तो सिस्टर रही हैं. समझ रहे हैं आप? सो पहले इन्होंने बात किस पे डाली, सारी बात डाल दी सुशांत के उस पे फादर पे. उसके बाद उसकी हेल्थ को लेके एक फॉल्स नरेटिव चला दिया डिप्रेशन का. उसके बाद केयरफुली ये आ गए सिस्टर पे. Yeah. सोनाली जी एब्सोल्युटली. एक बार दोबारा दिखाइएगा इनका कमेंट. मैं एक्चुअली वहां जाता नहीं कमेंट सेक्शन में. सीबीआई ऑफिसर हैड स्लैप्ड हर लेफ्ट एंड राइट. अरे सोनाली जी, मैं तो कहता हूं एक बार नहीं 2-3 बार करा होगा. बिकॉज ये बाहर कुछ और होते हैं. आप इनकी फोटोग्राफ्स देखेंगे ना, ये इन्होंने मेकअप के लिए लगाई होती है, लेकिन इंटेरोगेशन रूम में ना ये सब उतर जाता है जितना भी मेकअप है. बिकॉज जो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, जो इंटेरोगेट करते हैं, जो कैमरा में सामने दिखाते हैं वो लेके जा रहे हैं, वो नहीं होते. वो वहां पर कोई फालतू चीज ना सुनते हैं, ना आंसू देखते हैं, ना इमोशनल. आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए. अगर नहीं तो एक चमाट आती है. और इसको तो कितनी पड़ी होंगी रिया को. 100% नुपुर प्रसाद जी थे. So I agree with Sonali ji, absolutely. Very interesting thing is, very carefully she tries to portray herself in good picture. मैं ये जानना चाहता हूं कि सीबीआई ने इनका भांडा कैसे फोड़ा. ये हर एक चीज सुशांत के ऊपर डाल रही है, हर एक चीज. मैं ये जानना चाहता हूं एनसीबी ने अपनी चार्जशीट, अब वो चार्जशीट आप ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या लिखा है. ये लोग प्रक्योर और कंज्यूम कर रहे थे ड्रग्स टिल सितंबर 2020. सुशांत की डेथ के बाद भी उसका अकाउंट यूज हो रहा था. ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीबी की चार्जशीट में लिखा है. बिल्कुल. रिया चक्रवर्ती ऑस्कर अवार्ड परफॉर्मेंस दे रही है इंटरव्यू में, है सती सावित्री बन रही. और एनसीबी ने ये प्रूव करा है कि उसके और उसके भाई के लिंक्स हैं ड्रग सिंडिकेट के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ. वही हो गया ना, ड्रग सिंडिकेट अंडरवर्ल्ड एक ही चीज हो गया. माय गॉड. आप ये देखिए, शी वाज इन वन ऑफ द ड्रग चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स फ्रॉम 2017. गौरव आर्या, गोवा का पेडलर.
उसके साथ she had association from 2017. We have all seen chats. Yeah, अब yeah. अब सिमरन जी, हमने तो लिमिटेड चैट्स देखी होंगी ना. बिल्कुल. अब आप ये सोचिए कि कितनी चैट्स बैक एंड फोर्थ हो रही होंगी between them Absolutely, yeah. since 2017. I'm talking about 2017 से कितनी हो रही होंगी. और रिया का सेल्फ कन्फेशन लेटर देख लीजिए, ट्विटर पे है, मैंने भी काफी बार पोस्ट करा हुआ, काफी आसानी से करा है. सेल्फ कन्फेशन, जहां पर वो ये लिख रही हैं कि सारा के साथ वो ड्रग्स लेती थी. Yeah. और वो जो भी होता है, मैं नाम भूल गया हूँ ड्रग्स का, वो क्या होता है, डूबी होती है, व्हाटएवर. सो वो कहती थी कि रोल करो, और वो रोल करती थी. ये सारा कुछ रिया ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है लेटर. Yeah. तो क्या ये सब चीजें मायने नहीं रखती? और यहाँ पर आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो एज इफ शी इज द Innocent. गार्डियन एंजल Yeah. ऑफ द सोसाइटी. गार्डियन एंजल, भाई हमें नहीं चाहिए, माफ करिए, हमें ऐसे गार्डियन एंजल्स नहीं चाहिए अपनी सोसाइटी. फादर, कैन यू इमेजिन? चैट्स पकड़ी गई हैं शोविक चक्रवर्ती की, जहां पर वो ड्रग पेडलर से माल मांग रहा है. माल मतलब ड्रग्स मांग रहा है. Drugs, yeah. और किसके लिए मांग रहा है? Rhea. अपने पिताजी के लिए. अपने फादर के लिए, हाँ. हे भगवान, मतलब भाई, मतलब ऐसे, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके आगे. आई हैव नो वर्ड्स. I know the entire family is. I think her mom as well into drugs. देखिए, जब भी पेरेंट्स की बात आती है, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ. माँ बाप, सबके माँ बाप ही होती है, माँ होती है, पिताजी होते हैं. बट ये तो एनसीबी कह रही है. Yeah. And I was very disgusted with the information. I mean, how can you let your children go on that road? कैसे? But it's quite Sometimes I simple, really no? fail to understand. It's simple now, Professor Ji, like, because obviously they were into this drugs, तो बच्चों ने तो जाना ही है. घर से ही, like my mom always used to say कि जो घर होता है आपका, और जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स आपके फर्स्ट टीचर होते हैं, और घर आपका पहला स्कूल होता है जहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं. बिकॉज at school your teacher will not teach you everything, एक चीज, छोटी चीजें नहीं सिखाएंगे. You learn from your family, you learn from your parents, you learn at home. तो अब जो घर में जब उसके खुद के पेरेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली they will be into drugs and etc. मुझे सिमरन जी ये समझना है कि ये जो कैरेक्टर जया साहा है, ये क्या डॉक्टर है? अभी मैं सोनाली जी का एक कमेंट लूंगा. 4 बूंद दे दो चाय कॉफी में. बिल्कुल सही कहा इन्होंने. ये जया साहा जो है, क्या ये डॉक्टर है जिससे रिया पूछ रही है कि भाई, एक तरफ अब समझने वाली बात है, एक तरफ रिया पता नहीं कौन सी गोलियां खिला रही है सुशांत को. ठीक है, देखिए, हम लोग, किसी को भी खिला लो, आपको खिलाऊं या मैं खा लूं, गोलियां खा रहा हूं, साथ में वो कॉफी में और चाय में मिला के 4 ड्रॉप्स दे रही है. क्लियरली चैट्स में सबने देखा है, हम कोई अज्यूम नहीं कर रहे हैं ये बात. हम तो देख रही है ना बात. एग्जैक्टली. तो जया साह उसको बोल रही है केयरफुली 4 बूंद चाय में या कॉफी में डाल के दे दीजिए. और वो पूछ रही है, अच्छा एक ही बार दे सकती हूँ कि 3 बार भी दे सकती हूँ? कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ टॉर्चर सुशांत मस्ट बी गोइंग थ्रू? अगर दिन में वही चीज 3 बार दी गई, और ये सिर्फ ड्रॉप्स की बात हो रही है जो ये देते थे कॉफी और चाय में, सीबीडी ऑयल जो भी है वो. ठीक है, 3 बार ये दिया होगा, उसके बाद भगवान जाने क्या क्या ड्रग्स मिला के दिए होंगे. साइकोट्रोपिक मेडिसिन, उनको ड्रग्स भी कहते हैं.
सो ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग जो है वो घूमेगा ही घूमेगा. Absolutely. That is why a statement used to come uh, from the staff that Mm. अभी पार्टी होती थी तो Then सुशांत used to सोते थे. नीचे, हाँ वो सो रहे होते थे, वो Hmm. ऐसे ही तो सो रहे होते थे बिकॉज ये लोग उसको ड्रग कर देते थे, Yeah. कॉफी में चाय में मिला के पिला देते थे उसको. Even if she used to give depression की जो medicine होती है, अगर anti depression की tablets देती थी, और साथ में drugs भी देती थी, तो yes उससे तो बंदा सोता ही रहेगा. ड्रग्स के वो सॉरी डिप्रेशन का मुझे पता है बिकॉज उसमें उससे नींद आती है, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. तो उससे नींद आती है और इंसान सोता रहता है. तो ये और ऑन द टॉप अगर आप उसको जो ड्रग्स दोगे नार्कोटिक्स वाले, देन यस ऑफ कोर्स वो तो सोता रहेगा. एंड एट द टाइम जब आप उसको बोलेंगे किसी को भी, अगर मैं आपसे बोलूं जैसे आपने कहा प्रोफेसर कि अगर मैं लेता रहूं या कोई मुझे दे, and then I suddenly start saying to you, oh, professor, you are depressed, you got depression, severe depression, आप बिलीव करेंगे बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे मैं सोता रहता हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, या मेरा कुछ करने को मन नहीं हो रहा है, देन ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि आप डिप्रेस्ड हैं, दो यू नॉट डिप्रेस्ड. एक वो मेंटली जो आपको कोई बोल देते हैं ना, वो आप उसी को मानने लगते हैं. तो Absolutely. ये चीज उसके साथ की गई है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई अभी ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर वेदर ये सही होगा इस टाइम बात करना या नहीं. नहीं, लाइक करिए हम बात लोगों करिए. ने मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि मीमिया ने अभी जब तक सिमरन जी बात कर रही हैं, अपना पॉइंट रख रही हैं, प्लीज गो थ्रू दिस note. This is exactly what I was talking about. Handwritten confession of Rhea. या तो जब लोग कहते हैं ना कि आप एसएसआरियंस एज्यूम मत करिए, हम एज्यूम कुछ नहीं करते, हम तो फैक्ट्स पे बात करते हैं जी. ये कन्फेशन रिया ने दी हुई है अपने हाथों से. प्लीज गो थ्रू दिस कन्फेशन. आप लोग सारे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उसने खुद ही कहा है कि भाई शी यूज्ड टू कंज्यूम marijuana. Marijuana ही कहता है ना सिमरन जी? Mariana. Marijuana from a long time. Yeah. हाँ, प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू. So yeah, I was saying प्रोफेसर जी कि हाँ उसको ये कहा गया ना कि उसको बाइपोलर है, उसको डिप्रेशन है, ये है. तो when they were having discussion with the bank manager or something regarding his security, और जहाँ पे वो उसके रिया का फादर, रिया एंड आई थिंक श्रुति शाह है या कौन है, जया शाह है, एंड सुशांत एंड रिया. तो वहां पे उसने बोला था कि मैं तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलता हूँ मैं, एंड आई थिंक ही मेंशन बाइपोलर एज वेल. सो ऑब्वियसली जो उसके दिमाग में डाला गया है वो वही कहेगा, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग. ही डिडंट नो कि ऑल ऑफ द सडन मुझे क्या हुआ है. आज कोई मुझे अगर आकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स देना शुरू कर देगा, आई विल एज्यूम कि हाँ भाई मेरे को प्रॉब्लम है और तभी मेरे को ये दवाई दी जा रही है, वरना ऐसे तो कोई भी नहीं देगा. सो या दिस इज व्हाट हैपेंड विद हिम, एंड दे मैनिपुलेट विद वर्ड्स. कुछ भी लाइक पेंटिंग से उसको प्रॉब्लम है या कुछ है, आई डोंट नो क्या. ऐसे ही है सिमरन जी, मतलब ये तो वो बात हो गई कि भाई कुछ भी बोलना है, चलो ये बोल दें कि पेंटिंग को देख के उसको डर लग गया. कैसे लग गया भाई? ही वाज अ मैन ऑफ आर्ट. आप मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सुशांत के ड्रीम्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है. अरे भाई उसकी एक ड्रीम है, आप उसकी पहली ड्रीम पढ़िए जाके. उसकी ड्रीम है टू स्पेंड अ नाइट इन अ ग्रेवयार्ड. अब मतलब इज इट मेकिंग सेंस कि उसको पेंटिंग को देख के डर लग गया? मैन ऑफ साइंस, अ मैन ऑफ आर्ट, कभी हो सकता है ऐसा? और कहती है कि उसको पेंटिंग देख के डर लग गया और वो उसने अपने आप को होटल के रूम में बंद कर लिया 3 दिन के लिए. ऐसा कभी होता है?
अगर No. अगर सपोज करो कि मेरे को किसी चीज से डर लग रहा है तो मैं उस जगह रहूंगा क्यों? मैं तो सबसे Yeah, पहले वो जगह छोड़ के अपने देश वापस आऊंगा. This happened exactly. in Europe Yeah. and 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 this is absolutely wrong. देयर इज अ वीडियो जहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है डिज्नीलैंड का, बिकॉज डिज्नीलैंड का भी उसका एक था ड्रीम में, you know, bucket list. He wants to go to Disneyland. Indeed कि वो पेरिस वाले में गया है, बट गया तो है ना, वहाँ उसकी पिक्चर है जहाँ मिक्की माउस और वो सब का क्यूट से पिक्चर है, जहाँ यू नो इट वाज रेनिंग, काफी वेट लग रहा है वहाँ पे, बट yeah, they all lies, bunch of lies. Absolutely. तो मतलब ये तो यूरोप का ट्रिप अगर मैं डिस्क्राइब करूं, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप ट्रिप. इवन रजत मेहवाती जो अकाउंटेंट था उसने भी ये कहा कि यूरोप ट्रिप के आने के बाद सुशांत सर थोड़े से चेंज हो गए. चेंज इन द सेंस के थोड़ा बीमार बीमार रहने लग गए. मैं तो हमेशा कहता हूँ एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप ट्रिप. That's right. भगवान जाने कि उस ट्रिप में इसने उसको सुशांत को क्या क्या दिया होगा मिक्स कर कर. तो आई रियली फील बैड फॉर सुशांत दैट ही हैड टू गो थ्रू दिस. I know. हाँ बिल्कुल सही कहा, कह रही है सोनाली जी. ये एक नैरेटिव ही था. अब लोगों के दिमाग में, लोगों के दिमाग से कैसे खेला जाता है. हाउ डू यू क्रिएट अ डाउट. मैं कहूंगा सिमरन जी आपने सुना मीमिया के बारे में. आप बोलोगे क्या, और मैं एक कहानी रच के आपको दे दूंगा और Yeah. वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी. या Yeah. आप कहेंगी मीमिया से आपने प्रोफेसर के बारे में सुना. Yeah. What I'm trying to say is this is how a doubt is created and this is exactly what happened and how Rhea was playing after Sushant's death. मैं ये समझना चाहता हूं और कोई मुझे ये समझाए कि अगर अगर रिया को ऐसा लगा यूरोप में, तो ये Yeah. तो 2019 की बात है ना. Yeah. 2000 अक्टूबर की बात है. October 9. Yeah, October 19. अब मैं ये कह रहा हूं कि तब रिया ने फैमिली को कांटेक्ट क्यों नहीं करा, फादर को क्यों नहीं करा, सिस्टर्स को फोन क्यों नहीं करा कि सुशांत के साथ ऐसा हो गया है, हम लोग यूरोप आए हुए हैं, उसने अपने आप को होटल में बंद कर लिया है. समझ रहे हैं आप. Yeah. अगर ऐसा कुछ होता तो व्हाई डिड रिया नॉट कांटेक्ट द फैमिली. शी शुड हैव इमीडिएटली कांटेक्टेड द फैमिली दैट देयर इज एन एपिसोड. Yeah. बट ये स्टोरी, ये सारा कुछ कब आता है. ये सारा कुछ आता है सुशांत की डेथ के बाद. That के और बाद. हर Yeah. एक चीज में सुशांत का नाम लिया जाता है बार बार. रिया कह रही है सुशांत ने मुझे बताया था. फादर के केस में भी सुशांत ने मुझे बताया था. डिप्रेशन के केस में भी सुशांत की सिस्टर जो है वो वहां प्रेजेंट थी, मैं नहीं थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग. Yeah. Yeah. तो ये सारे नैरेटिव जो है दीज आर वेरी केयरफुली, जिसको बोलते हैं ना, मेड अप एंड प्लांटेड. बट मैं हमेशा कहता रहा हूं कि efforts from SSRians, we all have debunked each and everything. आप ये सोचिए सिमरन जी, अगर SSRians नहीं होते, फैमिली एक तरफ है वो फाइट कर रही है, वो तो Yeah. करेगी, वो तो Yeah. उनका राइट है. लेकिन बिल्कुल. I appreciate each and every SSRian, including myself, everyone, Yeah. that उन्होंने एक एक चीज डिबंक करके सामने लेके आए. एक एक चीज. नहीं तो ये लोग तो they would have walked away. Yeah. वॉक द वे. आप ये देखिए कि अगर सीबीआई नहीं आती तो रिया चक्रवर्ती के बारे में कभी पता लगता, कभी पता लगता कि 35 accused were caught in a single case Yeah. by Sameer Wankhede and his team. 35 accused. My God, it is a very big revelation. Exactly. 35 accused caught by Sameer ji and his team. And the accused number 1. किसी को पता था? जब Yeah. NCBI, I was also very shocked. मैंने कहा, oh my God, रिया का चक्रवर्ती into drugs. Oh, ये भी एंगल है. Yeah, that was a shocking. Yeah. There is one more. अच्छा, ये आप पढ़ रहे होगे. सोनाली का हिंदी में लिखा है उन्होंने, तो I don't know.
I am also assuming the same thing, Sonali ji, कि ये जो सिद्धार्थ पठानी है, ये जो नीरज है, ये जो दीपेश है, सैम्यूल मिरांडा है, ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं, इनको इंटेरोगेट करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इनको। मैं तो कहता हूं सबसे पहले इनका अरेस्ट होना चाहिए था, सबसे पहले। जब पुलिस वालों ने बॉडी देखी ही नहीं हैंग होते हुए, तो सबसे पहले इनको अरेस्ट करके अंदर Yeah. करना चाहिए। होना ही ऐसा चाहिए था, और but पठानी हुआ नहीं। और पठानी जो है, इसने पक्का कुछ ना कुछ बोला होगा, 100%, 100%, कुछ ना कुछ। देखिए ऐसा है, अंदर था। मैं आपको ये भी बता दूं, एनसीबी पठानी की तलाश में थी जब वो अरेस्ट नहीं हुआ था। उसको Yeah. काफी बार नोटिस भेजे गए, उसने अनदेखा करा। उसके बाद उसका नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकला, and Right. that's how he got arrested, and that is the main reason why his bail was getting denied again and again and again. Yeah. This is the right uh, information. मैं आपको कह रहा हूं, इनमें से कोई ना कोई टूटेगा। I'm sure. I think पिठानी का मुझे लग रहा है क्योंकि वो है एक kind of a डरपोक. Um, he's अरे not a बात तो clever कैसे होगा? person. मैं तो कहता हूं, ये जो जितने भी लोग हैं, ये हम्म, द ग्रेट डिसग्रेस्ड परमवीर सिंह कहाँ है? परमवीर कहाँ है? कहाँ छुपा बैठा है? परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, सचिन वाजे और ये 4 जोकर्स जो स्टाफ मेंबर्स हैं, Yeah. इनको और ऑस्कर अवार्ड विनर रिया रिया। और उसका भाई, इन सब ऐसा करिए, एक बस लेके आइए। मैं तो कहता हूँ एक बड़ी सी बस लाइए जिसमें, और भट्ट, मिस्टर भट्ट, Yeah. पूरी बस लगेगी। मुझे तो लगता है 2-3 बसेस लगेंगी। इन सबको बिठाइए, इन सबको लेके जाइए और एक ही साथ इन सब का नार्को टेस्ट कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। Yeah. आपने अभी भट्ट का नाम लिया। आई मीन मुझे नहीं पता था कि भट्ट जो है ये साइकियाट्रिस्ट भी है। इसको पता चल गया था कि सुशांत जो है डिप्रेशन में की तरफ जा रहा है और पाविन बॉबी के तरह उसका भी डेथ होगा। सो अरे अंतर्यामी है ये तो। एस्ट्रोलॉजी क्या बोलते हैं वो है और साइकोलॉजी सब कुछ है वो। सो मतलब भरे पड़े हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कभी स्कूल का फेस नहीं देखा है, बट दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, उनको सब पता है। These are criminal minded। ये स्कूल, ये अच्छे स्कूल में ऐसा नहीं है। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मोड बताता हूँ। हाँ, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जब हम करसी चावड़ा की बात करते हैं ना सिमरन जी, करसी जी। चावड़ा किसके साथ हम्म, पढ़ा है करसी चावड़ा? करसी महेश। चावड़ा स्टडीड विद मिस्टर महेश भट्ट, हम्म, क्लोज एसोसिएशन। मिस्टर महेश भट्ट वही हैं जिन्होंने जिया खान की मदर को थ्रेट करा था कि रुक जा, नहीं तो तेरी आवाज भी दबा दी जाएगी। yeah, ये सेम भट्ट्स हैं जिनकी फैमिली में से लवीना लोड, जो उनकी डॉटर इन लॉ है, बाहर आई थी और उसने कहा कि ये क्रिमिनल फैमिली है, क्या क्या करती है। उनकी कन्फेशंस जाके देखो जरा, लवीना लोड, गूगल करके आप लोग देखिए, सुनिए वो क्या कहती हैं। सॉरी। ये उसने सारा कुछ इनका निकाला है कि ये लड़कियों का मतलब प्रोस्टिट्यूशन का भी इसका बिजनेस है और काफी कुछ उसने बोला है वेरी क्लियरली, और ड्रग्स में तो है ही। सो या आई थिंक उसको भी तो उसने थ्रेट्स दिया था ना मारने का। हाँ, आई एम श्योर के मीना मैम के चैनल पे लवीना जी गई होंगी, एंड परहैप्स आई मिस्ड इट, मैंने देखा नहीं वो पार्ट, बट मैंने उनकी काफी इंटरव्यूज सुनी है। आई रियली विश इफ शी कैन कम ऑन एनी ऑफ द लाइव और स्पेसेस, कभी आ जाएं, कभी खुद से आए और सी द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट लेडी, कैन यू इमेजिन कितनी इंफॉर्मेशन होगी उनके पास।
It was Paramveer Singh only who told the family to file FIR. है हटा दिया आपने, एक रखो ना कीमिया, Oh, मतलब कीप ऑन चेंजिंग, नो एक रखो आप बड़ा सा कोई भी, हाँ ठीक है, नाउ स्टे. It was Paramveer Singh only who told the family to file FIR in Patna police station. He is the officer who goes by books. After all, police will be obeying the government order. Okay, I don't know. this is See, something it new. is, हाँ देखिए, now ये information कहाँ से आ रही है? I don't know, but I really want to understand, सोनाली जी, that अच्छा चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ. A death has happened at a place. Nobody knows what happened at Mont Blanc. Now I'm talking about 14 June 2020. Nobody knows. अभी न्यूज आई है, एकदम से आई है. सुशांत सिंह राजपूत, no more. The police reaches. What is the first step of the police? The first step of the police should have been to seal the crime, Yeah. to seal the Please. crime scene. The second step would be to call a doctor, because the police did not see the body hanging, to arrest all the people, staff members who were present on 14th, 13th night and 14th morning. जो भी वहां प्रेजेंट था सबको अरेस्ट करो. Yeah. इंस्टेड अब आप ये देखिए कि एक तरफ ऊपर अभी पुलिस गई है माउंट ब्लैंक, और दूसरी तरफ विद इन अ फ्यू मिनट्स देयर इज अ स्टेटमेंट बाय द मुंबई पुलिस दैट सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड. हाउ डू यू नो? आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन. हाउ डू यू नो दैट ही कमिटेड सुसाइड? आपने तो देखी नहीं बॉडी हैंगिंग होते हुए. आपने अब तो अभी तक फोरेंसिक्स को भी नहीं बुलाया. द फोरेंसिक्स, सोनाली जी, were called on the 15th, and I'm asking this question, why? Yeah. Why are you calling the forensics on the 15th when you should have called it on the same bloody day? You can see the pictures, you can see the videos. There is a conscious cop who leaked the picture of Sushant Singh, picture and the video. Carefully observe the ligature mark on the neck. अरे भाई साफ पता लग रहा है. चलो ये तो बातें बाद में आई. वीडियो को आप देखिए, आप ध्यान से देखिए. The entire Mount Blanc was looking like a fish market, a picnic spot. सिर्फ गोलगप्पे और पापड़ी चाट वाला नहीं था, बाकी तो ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले का मोहल्ला उठ के आ गया. Every who and who are you was invited inside Mont Blanc. सब आ रहे थे, जा रहे थे. Was the intention to contaminate the place? Of course it was. Of course it was. Now, Paramveer says in one of his interviews that Sushant was searching for painless death. अरे भाई कैसे? If a person is searching for painless death, तो फिर वो सबसे पेन वाली डेथ क्यों चूज करेगा? Yeah. According to मुंबई पुलिस, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि सुसाइड. Yeah. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये क्वेश्चन. Why? Why were you not cooperating with the Patna police? अगर आप कह रहे हैं कि परमवीर ने ही कहा था कि पटना में जाके आप एफआईआर करिए, नहीं कर सकते थे. 302 कैसे डालते? When there is an ongoing investigation already happening in Mumbai, इंक्वेस्ट के नाम पे इन लोगों ने 60 दिन लगा दिए. आप दूसरी स्टेट में जाके 302 का केस कैसे डाल सकते हो? किसी भी लॉयर से पूछिए, नहीं डाल पाएंगे. So all these things we need to understand this. The time of death, Sonali ji, the time of death is not mentioned on the post-mortem report. Have you ever wondered why? क्यों? Because time of death अगर mention कर देंगे पकड़े जाएंगे ये लोग. बिल्कुल. Paramveer knew that nothing was going to happen in Mumbai, so he told family to do that. Was the way, or case went to Supreme Court, and I don't think so. I wanted to ask her, to Sonali, how she knows कि परमवीर ने बोला है. नहीं देखिए ऐसा है ना सिमरन जी,
सोनाली जी must have read somewhere. सोनाली जी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप ये बता दें कि ये आपने कहाँ से सुना है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन मेरे को तो कहीं दिखी नहीं पब्लिक डोमेन में. Yeah, because also wanted to know कि परमवीर क्यों बताएगा. कि वहां जाके करो या ये करो. Because obviously he was trying to what's the word I'm looking, clean all the evidence ना. और उसको तो ये भी नहीं पता था कि कौन कौन गया है बॉडी लेके या किसने उतारा, कौन कौन वहां था. हमारा ही आदमी लेके गया था. He was asking other, आप सोनाली जी एक काम करिए, आप इंटरव्यू देखिए परमवीर की. जस्ट सी द वीडियो and just see his body language and just see the way he asked his subordinates, हमारे लोग ही लेके गए थे बॉडी. What do you mean हमारे लोग लेके गए थे? मतलब और कौन से लोग थे वहां पर? I mean, I'm just trying to understand. शुरू करें. Please keep quiet now. शुरू करें. Sir, there have been a lot of speculations regarding Sushant Singh Rajput case. The Bihar police is here. One of the officers has been quarantined, and there are a lot of theories being floated. There was a party. There was a connection to Disha Salyan's case. What is the Mumbai police's take on this? सबसे पहले तो I would like to answer your question about the death of Sushant Singh Rajput. On 14th June, बांद्रा पुलिस स्टेशन उनको ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कुछ दुर्घटना हुई है. देयर आफ्टर आवर पुलिस ऑफिसर रश्ड है एंड दे फाउंड श्री राजपूत बॉडी एक बेड पे रखी गई थी, जो भी घटनाक्रम था. और कुछ जो वहाँ थे उनकी मदद से बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया. हमारे लोग लेके गए थे हॉस्पिटल, हमारे लोग लेके गए थे बॉडी को हॉस्पिटल. हमारे लोग था. सो हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया. हॉस्पिटल में जितने लोग थे उनके बयान नोट किए गए. उनकी एक सिस्टर भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी थी. घर के जो लोग थे उनके बयान नोट किए गए. जो ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को जो बुलाया गया था उसका बाद में बयान नोट किया गया. और जो एविडेंस थी वहाँ पे पंचनामा किया गया. एंड पंचनामा करने के बाद फ्लैट को सील कर दिया गया. एंड 15 जून को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम कलीना से एंड डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से वो जब वहाँ पर आई तो फ्लैट को अनसील किया गया. पूरा एविडेंस कलेक्ट किया गया एक्सपर्ट्स द्वारा. एंड उसके बाद ही पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फ्लैट को अनसील करके हैंड ओवर कर दिया गया था. जो अब तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 56 लोगों की अब तक स्टेटमेंट्स ली गई हैं. एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया है. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं. उनका जो गैजेट्स थे, उनका लैपटॉप या फोन्स, उसको एग्जामिन किया जा रहा है. और एक बहुत ही डिटेल और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने आज तक किया है, बांद्रा पुलिस कर रही है. एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर जोन 9 मिस्टर अभिषेक त्रिमुखी ने सुपरवाइज किया है. अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है. जितने भी इसमें पॉइंट आते गए वेरियस स्टेजेस पे, चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का पॉइंट था, फाइनेंशियल. मुझे एक बात समझ नहीं आती और वो बात ये है कि द ग्रेट परमवीर सिंह कहते हैं कि हमने फॉरेंसिक की टीम भेजी और डॉक्टर्स की टीम भेजी. भाई डॉक्टर्स की टीम तो आपको 14 को भेजनी चाहिए थी ना. पुलिस के साथ 15 को वहां पर वो क्या करने गए थे? केला खाने गए थे. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what was the intention. आप forensics को 15th को भेज रहे हो. 14th को we've already seen the police there taking care of the evidence. पॉलिथीन में लोग ले जा रहे हैं, क्लैम्प्स ले जा रहे हैं निकाल के.
We have all seen that. 14th night ko, late night ho bhi. Where was forensics then? And what are doctors going to do on the 15th when the body has already been taken on the 14th? Yeah. 15th को क्रिमिनेशन भी हो गई और वहां पर फिर डॉक्टर्स पहुंच गए थे लोटा लेके. For Yeah. what? I agree with Mr. Duel in TV. He never says the word suicide in this interview. That's true. He never said that in the suicide word. It was Trimukhe who gave that statement. हाँ नहीं, लेकिन इसमें भी उसने ये नहीं बोला ना कि सुसाइड. अरे आप इसकी इंटरव्यू अगर दोबारा देखोगे ना, he मतलब he doesn't have detailed knowledge about the case at all. हाँ, Either he is reading from the paper or he is looking at his subordinate. हाँ भाई बता कौन थे, क्या था, हमारे लोग ही थे. Half of the things he doesn't know. Half of the thing he is very conscious. यार तुम कमिश्नर हो मुंबई के, you should be confident enough. आप देखो तो सही, उसे बोला ही नहीं जा रहा. He is eating his words. मतलब बड़ा he is being very careful यार, कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए. I really want to understand why was the entire machinery saying that we will not allow CBI to investigate this case. Now all those people who are thinking कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई सच्चाई है कि नहीं, प्लीज गूगल. दिस इज एग्जैक्टली what the former Home Minister of Mumbai was saying. Exactly. We will not allow. And that the crazy monkey, उसका नाम क्या है, संजय राउत. And of course, the Mumbai police was never gave any cooperation with the Patna police. And I'm wondering why. अगर आपके subordinates ही हैं सारे, and you are clear with your investigation, दिशा केस में या एसएसआर केस में आप जो भी आप कर रहे हो, तो शेयर करने में क्या हर्ज है? आप अपनी फाइल्स शेयर करो. दिशा के केस में वो बड़ी केयरफुली दे सेड कि फाइल्स गॉट डिलीटेड. कहाँ है रणवीर सिंह? वेयर इज ही? So all these things, see, listen to the interview of the family. When I say family, प्रियंका जी की आप इंटरव्यू सुनिए, उनके थॉट्स सुनिए, स्पेसेस में सुनिए, क्या कहा है. I'll be using my words, उनके थोड़े डिफरेंट होंगे, प्लीज. क्लियरली कहा है यार कि we were not getting anything from Mumbai police that time. उस अपने आप को रखी देखिए उनके शूज में, आप क्या करते हैं जहां पर द एंटायर स्टेट मशीनरी इज अगेंस्ट यू. जस्टिस इज डिनाइड. आपको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा. आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार क्या करें. They went to their state and they filed an FIR there based on the facts they had. On the other hand, the Mumbai police had the post-mortem report. वो legal paper जो उनके पास था, यहाँ पर उन्होंने खुद ही लिखवाया था कि भैया SSR ने took his own life. This is exactly. But रूप कुमार शाह ने वो भी डिबंक कर दिया आके. उसने गलत है. आप समझ रहे हैं? Roop Kumar Shah debunked that theory also. And personally, if you ask me, he's a very important key witness in SSR case. Very important person. Yeah, absolutely. Now the question is, CBI, have they took his statement, recorded his statement yet or not, or have they summoned him or not? There's a big question. Otherwise वो न्यूज़ में आ जाता. The great Paramveer Singh caught in corruption case. केसेस चल रहे हैं जी उसके ऊपर भी नहीं. आप उनकी धर्मपत्नी है, इंडिया बुल्स का रिकॉर्ड देख लीजिए.
केस दबा दिया होगा, आई डोंट नो। देखिए, आप थोड़ा रिसर्च करिए गूगल पे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ये सब कहाँ से कहाँ बने, कैसे बने, थोड़ा रिसर्च करिए आप। Yeah. परमवीर के बारे में अगर आपको ज्यादा पता करना है तो प्रज्ञा जी हैं बीजेपी की, उनसे जरा बात करिए, वो बताएंगी कि क्या अट्रॉसिटीज हुई थी उनके साथ जेल में। Hmm. Of course, that's a discussion for another day, but a lot of people have said a lot of things. But we will, our concentration is on Sushant case. Sushant, जब yeah. जब भी मैं किसी को देखता हूँ, चाहे वो त्रिमुखे हो या परमवीर हो या कोई भी हो, जगताप हो, so I get very inquisitive to know कि यार ये इनकी स्टोरी क्या है, where are these people coming from? Yeah. Sonali, you were right. Bihar police was treated like they're nothing. They were quarantined, and they were not. They didn't. I mean, Mumbai police didn't help them the way they were expecting. So yeah. सोनाली जी पूछ रही है हाउ बिहार पुलिस वाज ट्रीटेड। कोविड का टाइम था, Quarantine them. everything was, anybody who coming from outside the state would be in a state of quarantine. Mm. Dafa section 144, 145, everything was implemented everywhere. No gathering of more than 3 to 4 people at certain places. Well, माउंट ब्लैंक पे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब पटना पुलिस यहां से गई वहां पर, तो उनके साथ मिसमैनेजमेंट, मिसट्रीटमेंट, सब कुछ हुआ। आईपीएस तिवारी को क्वारंटीन कर दिया तुरंत, उसकी टीम को भी तुरंत क्वारंटीन। दे डिड नॉट अलाउ देम टू फंक्शन, दे मिस हैंडल्ड। आप वीडियो देखिए कैसे धक्का मार रहे हैं बिहार पुलिस को। यार आपके अपने ऑफिसर्स ही तो हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं फाइल्स डिलीट हो गई। The correct information is that the Bihar police, the Patna police, had to disguise themselves. क्या आपको मालूम है ये? As astrologers, पंडित बन के लोगों के पास गए हैं वो, भेष बदल बदल के महेश शेट्टी के स्टेटमेंट लिए। Now all these things you need to do a little research, थोड़ा सा। Okay, this is something new. I'm hearing from you that कि वो महेश शेट्टी के पास या किसी के भी पास अपना वो चेंज करके गए हैं. That's something new for me. Okay, this is new. What Dual Indivi is saying. CBI director met Mumbai Police Commissioner yesterday. This is very interesting. They, apart from other matters, they must have definitely discussed ongoing matters, ongoing cases, both of Disha Zalia and Sushant Singh Rajput. Hmm. So this is going to be very interesting. Case का outcome क्या है? I did not see that. मेरे को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है. So I'm sure in coming days we'll get to know more information. And Deol sir, if you come across any information, more information on this, please do let us know. It always helps, and इससे ही थोड़ा पता चलता है आगे क्या है, क्या हो रहा है. So everybody played their part. हर एक ने अपना रोल प्ले करा है इसमें. If Mimia Salgaonkar has any
more video to play. रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है, जी एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? Yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life. And today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death. And I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती हैं. उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं. तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life, and I touched his feet as a mark of respect, which would I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा. At that moment, did you regret कि मैं 8 जून को क्यों छोड़कर गई घर? I डेफिनेटली ये थॉट मेरे मन में आएगा. डेफिनेटली मैं चाहती थी कि मैं वहां हूं, मुझे लगा नहीं ऐसा होना चाहिए. लेकिन जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो हुई है जैसे हुई है. क्या मैं उसे बदल सकती हूँ? नहीं. You still regret it today? I regret that he's not here. I regret that we lost the most beautiful boy I've ever seen. And I regret the joke that a human life has been made of and the human death has been made of. At least respect him. Okay, this is good. This is good. CBI Director Sumod Kumar Jaiswal visited Mumbai Police Commissionerate today and had a productive interaction with CP Mumbai Police Vivek Pansalkar. Great. मीमिया जी, हमने देख लिया ट्वीट, सबने देख लिया, आप हटा सकते हैं इसे. हाँ, very interesting thing, guys. Sorry, Babu. She says, sorry, Babu. और क्या बोलती मैं? Because people have made a joke. I want to remind Rhea Chakraborty, Oscar award winning performance. But बहन जी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जब आप मॉर्चरी गई थी तब तो मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था. Nobody was raising a finger or talking about सुशांत सिंह राजपूत. आप तो 15 तारीख को गई थी. तो how are you saying this, that people have made your deaths a mockery? One point. Second point is, you are saying that you went to the mortuary and the mortuary people said कि पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद जब बॉडी यहां से जाएगी तो आप मिल सकते हो. अरे पोस्टमार्टम तो रात को ही हो गया था. Perhaps she did not do her homework correctly, and that's why we are here to debunk her each and every statement. She says, those people said, पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद यहां से बॉडी जाएगी, आप तब मिल सकते हो. So just for 3-4 seconds, I saw the body, touched his feet. Absolutely lie. And I'll tell you why. Lie, and I'll tell you why. Two people. One is Surjit Singh Rathore. In his live video, he has said that Rhea Chakraborty spent good 15 to 20 minutes with Sushant Singh Rajput in the morgue.
good 15 to 20 minutes. Another person, an attendant of Cooper Hospital, has come out live in his interview. मैंने ट्वीट करा हुआ है, अगर मीम में ढूंढ ले तो, या फिर उसने भी ये कहा है, he is the attendant of the morgue room where the body was kept in a freezer. फ्रीजर होता है, फ्रीजर से उसने बॉडी बाहर निकाली, थैंक यू इंडियल भाई, बॉडी बाहर निकाली। उसके बाद रिया चक्रवर्ती was there along with सूरज सिंह, सूरज सिंह के साथ थे। उसने अटेंडेंट को बोला कि आप इस कमरे से बाहर चले जाइए, तो उसको समझनी है अटेंडेंट को। अटेंडेंट वॉकड अवे फ्रॉम दैट रूम एंड दीज पीपल वर देयर फॉर 15 to 20 minutes. Can you imagine? Blatant lies. देखिए, आप डोंट बिलीव मी, ट्विटर पे सर्च करके सुरजीत सिंह राठौर इंटरव्यू, सुरजीत सिंह राठौर SSR, सिर्फ इतना टाइप करिए, गूगल पे करिए, ट्विटर पे करिए, सर्च में इतना करिए। उसके बाद आप स्क्रॉल करिए, आपको कोई भी इंटरव्यू मिलती है, आप उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। और भी अटेंडेंट की भी इंटरव्यू होगी, अगर आपको वो भी मिलती है, आप वो सुनिए। It was never 3-4 seconds. Our intention is, if a particular person is lying, we'll always be there to correct that individual. You cannot play any victim card. Please don't do that. Woman card, crying card, ये सारे कार्ड जो खेल रही है ना, ये this is wrong. Should not be acceptable at any level. सच बोलिए ना, मतलब छुप छुप के जा रही है। Why? What is the reason? मतलब छुप के जा रहा, और you're not going to Mont Blanc, sorry. You're not going to Mont Blanc on the 14th. You're not attending the cremation. But you have all the time to go to the mortuary. I don't know. देखिए, मैं तो कोई assume नहीं करूंगा, ना speculate करूंगा, ना ये बोलूंगा कि क्यों गई थी वो वहां, 15-20 मिनट वहां क्या करा उसने, मुझे नहीं पता। अनलेस मुझे कोई पुख्ता सबूत दे दे, कोई इंसाइडर बोल दे आके, otherwise I'm nobody to comment on that. I can only comment based on things which are facts and which are in public domain, कि हाँ भाई ये हुआ है, और इन लोगों ने, इन विटनेसेस ने आके स्टेटमेंट दी है। So that's all I wanted to talk about seeing that video. सिमरन जी, आपने कुछ बोलना हो, प्लीज? नहीं प्रोफेसर जी, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, and we're gonna talk more about the same video tomorrow as well. And yeah, I mean, it's regarding Sushant case, you know, we can talk non-stop, but if it's best like we leave some topic for tomorrow as well. That's perfectly fine. सिमरन जी, Yeah. मैं एक सोनल जी का कमेंट ले सकता हूँ, लास्ट वाला जो उनका है, वी कैन नॉट ब्लेम द पुलिस फोर्स वाला। हाँ, सोनाली जी, सॉरी माय बैड। सोनाली जी, वी कैन नॉट, सोनाली जी कह रही हैं, वी कैन नॉट ब्लेम पुलिस फोर्स बिकॉज दे हैव to obey the government's orders. Government changes, everything changes. Absolutely right. I agree with you, Sonali ji. भाई, एक छोटा सा संतरी क्या करेगा जब मंत्री बोल देगा, ऑर्डर दे देगा। अगर संतरी नहीं मारेगा तो मंत्री उसको निकाल देगा। I completely agree with you, Sonali ji, on this. We are not against the entire Maharashtra police. We are against the few officers, the rotten fish, जो उसको बोलते हैं ना, rotten fish, तालाब में गंदी मछलियां। The people who were investigating Sushant Singh Rajput case, the officers who were investigating the Disha Salian case.
There are always bad fishes in the pond. Of course, नीचे वाला ऊपर का ऑर्डर ओबे करेगा, ऊपर वाला सबसे ऊपर का ऑर्डर ऑर्डर ओबे करेगा. But there is always a possibility of saying no. I will not do the wrong. सोनाली जी, how do you think कि वो जो सुशांत की फोटोग्राफ या वीडियो लीक हुआ वो किसने करा होगा? कभी सोचिएगा कि इनसाइड उस एंगल पे कौन खड़ा था? एक पुलिस वाला खड़ा था जिसका कॉन्शियस माइंड था. और मैं आज भी किसी की परवाह नहीं करता. मैं आज भी सलाम करता हूँ उस ऑफिसर को. मेरे को नहीं पता वो कांस्टेबल था, कौन था. सलाम करता हूँ कि ऐसे करेज दिखाया, वो पिक्चर्स लीक करी. नहीं तो हमें कभी सुशांत के बारे में या उसके लिगेचर मार्क के बारे में, उसका स्टन गन के मार्क के बारे में, उस रूम के बारे में कभी पता ही नहीं चलता. कभी भी नहीं पता चलता. Absolutely. We all know the MVA government was there and who was ruling Mumbai and who all are masterminds. मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिशियंस के साथ साथ बॉलीवुड, selected Bollywood people are behind the murder of Sushant Singh Rajput. मैं हमेशा से कहते आया हूँ और हमेशा कहता रहूंगा. This is a clear case of murder. There are people who, from Bollywood, politicians, the bureaucrats, everybody is involved. Why is it taking so much time for this case? This is not a case of just murder. A lot of things are going to open up. बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी. ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, सिंडिकेट्स, ये सब इन्वॉल्व है. अंडरवर्ल्ड, एंटी नेशनल्स, God knows what else is going to come out. I just pray to God that I pray to God and I will raise my voice also. And like every SSRian, they are doing every day and night. झुक के सबको सलाम है. I bow down to each and every one relentlessly day and night. बस ये हिम्मत नहीं तोड़नी. To change the society, to change the wrong, we have to be a part of that change. जब तक हम उस चेंज का पार्ट नहीं रहेंगे, अपने में थोड़ी पेशेंस नहीं रखेंगे कि होगा, चेंज आएगा, चाहे स्लोली हो. जैसे मैं कहता हूं ना कि अगर दिल्ली से चंडीगढ़ गाड़ी जा रही है और ट्रेन अगर स्लो भी हो जाती है, वो शताब्दी एक्सप्रेस होती है, वो स्लो भी हो जाती है, डज नॉट मीन that the train will not reach its destination. Yes, sometimes it's very frustrating. यार ट्रेन रुक गई यार, स्लो हो गई यार, बहुत स्लो चल रही है. We might get delayed by a few hours reaching our destination, the platform, the station, but the train will definitely reach. And that should always be in our mindset, ladies and gentlemen, that we have to be together, stick together for a common cause, which is justice for Sushant Singh Rajput. It's been a pleasure. I am so blessed, and it has been a pleasure knowing each and every SSRian, irrespective whether you whether people like each other or not, people have blocked each other, but within hearts, everybody wants justice for Sushant Singh Rajput, and that should be the objective. मिलके एक मिलजुल के अगर हम ये जस्टिस ला सकते हैं सुशांत के लिए, so that tomorrow there is no new सुशांत, कोई ऐसा सुशांत ना हो जाए दोबारा, या दिशा सालियान या जिया खान ना हो जाए. हमारी ये कोशिश है, ये a collective effort. Thank you, ladies and gentlemen.
thank you, Mimia Salgaonkar, for giving me the opportunity to speak here. It was a pleasure. We'll come tomorrow, next time with some new topic, some different topic. Kyo Simranji? Absolutely right, Professor Ji. And thank you, Professor, for, I always love hearing you. And because you have tremendous knowledge about this case, you have done a lot of research. मैंने नहीं करा है, so I'm zero. And thank you so much for giving insight out about this, what happened and in this with Sushant. And I know, like, we all are like got some of the information, and some of the information we're just assuming. But hey ho, that's amuse. Whatever we amusing is, assuming is correct actually, but we cannot say in public. So thank you so much for all the listener for listening to us, and please join us tomorrow again. Like, subscribe, and share this video with your friends and family as much as you can, so that the message pass to your friends and family as well. So once again, have a good day, good night, good evening, everybody. Take care. Love you all. Thank you, Professor G. Thank you, Mimia, for giving me stage to speak. Thank you, Mimia. Thank you, Simranji. And before we wrap up, just one thing I wanted to say. Sushant, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं. Yes, Sushant, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है. Justice for Sushant Singh Rajput. Justice for SSR.